let's move. Let's start recording of the session. And I'm seeing smiling faces, very enthusiasm I'm seeing on the faces. चेहरों पे बड़ी मुस्कुराहट है और जोश है. ये जोश बना रहे आगे तक और ये सीखने का दौर आइए मेरे साथ शुरू करें. तो इस सीखने के दौर को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि हम कौन हैं और आप हमसे जुड़े हैं. तो वैसे तो चीजें आपने पता कर ली होंगी, बट फिर भी मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि वी आर अ जॉइंट वेंचर ऑफ टू कंपनीज. वन इज पीपल ट्रेनर्स, अनदर वन इज मार्गदर्शन गुरु. And me and Satya both runs this joint venture. Satya is not available today, so he's not feeling well. That's why I alone would be available for this class now. आज की क्लास में मैं अकेला ही हूँ और अदरवाइज हम दोनों लोग इकट्ठे ये वेंचर चलाते हैं. And Satya is purely from digital marketing. He has 12-13 years experience in digital marketing. And I comes from corporate. So I was in corporate, and after serving corporates, some domestic and multinational corporates for 20-21 years, then I quitted from there. I started my own journey to live independently and to serve people more and more. And during these 20-21 years, I have worked in training field, I have worked in technical field, I have worked in human resources a lot, and training was my passion. And that's why I started this journey in the training of this all. But when we started this journey, we faced a lot of challenges over there. And thank God, we had this digital marketing experience. This took us away ahead to learn a lot, to earn a lot, and to move a lot on the success path of our career, business life. So whatever we have learned during these years, the same thing we are going to share with you. कोई ऐसी बात हम यहाँ आपके साथ नहीं करने वाले जो हमने किताबों से पढ़ी है. Whatever we are going to share with you, everything is whatever we have experienced. तो हम और आप सब लोग एक जैसी नावों में सवार हैं. ये लॉकडाउन, कोरोना 2 साल 1.5 साल का जो पीरियड है, इस सब ने हम सबको झकझोरा है. The people who are on this platform, almost everyone belongs to almost same category. Those who are not getting salaries from somewhere, they are freelancers, they are entrepreneurs, so they are working themselves, or marketers. Those who earn their livings, those who are the backbone of their businesses, and they have faced these kind of challenges. So how you can come out of such kind of challenges, and how you can make your this shock proof and bump proof way for your business. And digital marketing is a wonderful way. We have experienced this, and the same thing we are going to share with you today and now onwards, today onwards. During these 3-4 months journey, we will discuss what we have learned, and we would expect from you people that whatever you experienced in your journey, you can share, so that the people who are here in this room, who are in this particular batch, they can get benefited. ये छोटा सा इंट्रोडक्शन, इसके बाद हम साथ रहेंगे तो एक दूसरे के बारे में बहुत सारी बातें हम जान सकेंगे. So let's move ahead without spending a lot of time. And now, yes, so many people have joined. My God, Deepika Tiwari, I would like to know about you. Please put your introduction in the chat box so that others also can know you. And there is Ailet Guru. Yes, please put your introduction in the chat box, or you can open your mic. We can spare 1 or 2 minutes. Monica Agrawal ji, Rafat Heather, yes, Shushma Singh, Binayak Sathe ji. Yes, sir. Yes, please.
You can open your mic and introduce to the new members Yes, here. ma'am. Yes, please. I'm Rafat. I'm in 10th class and I'm practicing digital marketing for my dad's business. Great, Rafat. So Rafat is youngest learner here. She's in class 10th, and I'll salute this girl. She's learning these skills to help his father in business. तो भारत की ऐसी बेटी को मैं सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ. रफत, आप बहुत आगे जाओगे बेटे, ऐसे ही सीखते जाओ. Thank you, sir. Great, great. Next, please. हेलो. Yes, मोनिका मैम, स्वागत है आपका. नमस्कार सर. नमस्कार मैम. जी सर. सर आवाज आ रही है मेरी आपको? बहुत अच्छी धमाकेदार आवाज आ रही है. प्लीज कंटिन्यू. सर मैं मोनिका अग्रवाल नोएडा में अपना गोवृत्ति स्टोर चला रही हूँ और काफी टाइम से सर से जुड़ी हुई हूँ और बहुत सारे बेनिफिट्स ले रही हूँ. व्हाट्सएप, टेलीग्राम, छोटे छोटे कोर्सेज के बाद अब मैं प्राइम कोर्स के साथ जुड़ी हुई हूँ और काफी लंबे समय से सर के साथ ज्वाइन हूँ और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही हूँ. तो थैंक यू सर. थैंक यू मोनिका जी. और मोनिका जी की एक खूबी है कि अगर कोई इनके साथ जुड़ता है तो उसको डायबिटीज तो ये कम से कम नहीं होने देते, और अगर किसी को है तो उसकी डायबिटीज को ये कम करने के लिए इनके पास मिलेट बेस्ड ग्रेन्स और फूड सिस्टम है, जहां से आप इनसे ले सकते हो बिना किसी अडल्ट्रेशन के. ये लोगों को फूड सप्लाई करते हैं और बहुत शिद्दत से ये फैमिली नोएडा के लोगों को तो सर्व कर ही रही है. बाकी मैं तो चाहूंगा कि पूरी इंडिया में और दुनिया में पैर पसारें. आप मिलेट बेस्ड फूड अगर लोगों को देंगे तो डायबिटीज से बहुत जल्दी लोग बाहर आ सकते हैं. ये बहुत बड़ा एक सीक्रेट है और मैं चाहूंगा कि ग्रुप के लोगों को भी आप कभी कभी ये जागरूकता जरूर दिया करें. यस, थैंक यू मोनिका मैम. नेक्स्ट प्लीज. श्योर सर, श्योर. थैंक यू सर. ओके, वेलकम मैम. यस, दीपिका तिवारी, पायलट गुरु, एंड यस there is somebody, Sandeep Kankaria ji, Syed Jishan Sakir, Binayak Sathe ji, and Vivek ji. Please introduce yourself. You can open your mic. माइक है आपके पास. माइक और कुर्सी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं. प्लीज, मिला है तो पूरा उपयोग कीजिए, फिर जल्दी से हम लर्निंग की तरफ आगे बढ़ेंगे. Hi Lokman sir, hello everyone. This is Deepika. I am currently based out of Mumbai. I am a manager by profession and also a budding entrepreneur. This is about myself. That's it. I'm done speaking. Thank you everyone. Thank you Deepika. Great, wonderful. Thank you. You are welcome. Next please. Yeah, good evening to all. My name is Syed Zishan Shakir. Basically, I've been an offline trainer in my company and now trying to get into online training and also some kind of a freelance work, including digital marketing. I'm trying to create a brand for myself and build some websites where I can bring in traffic so that I can provide services. Thank you जिसान जी, स्वागत है आपका. Yes, next please, बिनायक साठे जी. गुड इवनिंग. विनायक साठे, थाना से हूँ. इंश्योरेंस में हूँ. इंश्योरेंस से लगभग 15 साल में इंश्योरेंस में हूँ. मैं लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस में सब कुछ. और अभी नया ये लिया है, मैं इंश्योरेंस एडवाइस रिक्रूट करता हूँ टाटा AIA के लिए. तो अभी क्या है जी जी अभी कैसा है कि पहले इंश्योरेंस वाले ऑफलाइन करते थे, अभी कैसा है कि वो प्रोस्पेक्ट ऑनलाइन ढूंढते हैं या मिलते हैं. तो इसके लिए ये नया क्या बोलता है मोड मैंने चूज किया हुआ है, और डिजिटल मार्केटिंग. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक्स लॉट विनायक जी. ग्रेट. पहले आपने कहा था थाना से हूं तो डर लगा एक बार, तो मैंने कहा आज तो पुलिस से भी पंगा पड़ गया. ग्रेट. नेक्स्ट मुंबई के नजदीक थाना है. अच्छा, यस, ग्रेट सर. थैंक यू सर. संदीप कांकरिया जी. अरे वो हेडफोन दियो कर, मैं ऑनलाइन मार्केटिंग सीख रही हूँ. तू भी सुनेगा वो हेडफोन? हेलो. नहीं, आप सुनाई दे रहे हैं. सुषमा जी, आप बोल रहे हैं बस. जी संदीप जी. Namaste, good evening. I'm Sandeep Kankaria from Pune, Maharashtra, and I'm an entrepreneur. We have
factories which manufacture chemicals, battery chemicals specifically. And I'm learning this so that it can help me in my business. Oh, great, संदीप जी, you are quite young. मुझे लगा 2 फैक्ट्री चलाने वाला आदमी थोड़े तो सफेद बाल करके रखे होंगे. वो कमाल है. So Sandeep Kankaria is an entrepreneur. He's running minimum 2 factories. I know 2 factories of you. उसकी ज्यादा छुपा रखी हो तो पता नहीं. तो आप देखो कि इतनी छोटी उम्र में पूरी इंडिया में घूम के 2 फैक्ट्रियां चलाना, 2 फैक्ट्रियां लगाना, और आप बात करेंगे तो लगेगा क्या स्टेबिलिटी है इनकी बात में. चलिए, इसी के साथ स्वागत है आप सबका, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप सबको यहाँ एक प्लेटफॉर्म पे देखते हुए कि अलग अलग फील्ड से लोग जुड़े हैं. और खुशी की बात यह है कि आज डिजिटल मार्केटिंग हम सबकी जरूरत बन गई है, और आज इस पर हम अपने कदम बढ़ाने जा रहे हैं. रादर आप थोड़ा मोड़ा तो सब करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, हम इसे थोड़ा सा जो हमने किया वो और सीख लेते हैं. हम कैसे करते हैं, हमने क्या किया है, दुनिया कैसे कर रही है वो सीखेंगे, और कितने गैप्स हमारे आपके बीच में है वो सारे सीखेंगे. आईलेट्स गुरु का एक इंट्रोडक्शन रह गया है, तो वो जल्दी से पीछे बैकग्राउंड में आप अपने चैट बॉक्स में रख देना, और फिर हम अब आगे बढ़ते हैं. समय की घंटी हमें अलाउ नहीं कर रही कि हम और बात करें, सीधे आगे बढ़ते हैं. And I would like to know from you people, what language would you prefer to have these instructions? I mean, what should be the language of instructions here? Rather, whatever you write in the chat box, English or Hindi, please put as per your convenience, but I'll deliver in both the languages. आप हिंदी लिखो, अंग्रेजी लिखो, पर मैंने तो दोनों भाषाओं में डिलीवर करना है. But I will submit that if you think that you are not able to take something which is being delivered in Hindi, you can stop me. That's your right. और अगर आपको लगे कि अंग्रेजी में बोलते हुए कुछ समझ में नहीं आ रहा, you also can stop, या रोक सकते हैं आप मुझे. आपका हक है, आप यहाँ से समझ के जाएं. Rather, I'll speak both the languages. मैं दोनों ही भाषाएं यहाँ बोलूंगा, और comfortable with both. Wonderful. So I'll go a little bit more Hindi because people are comfortable with both the languages. In case somebody is not comfortable, you can ask me, you can stop me. Yes. Wonderful. Let's move ahead. Today in this room, so I had some information that there are few people who have joined for today only. Okay, so one person also had joined, Dr. Mayank Bats from UAE. Dr. Mayank, I will request you to introduce yourself in the room. So I was just trying to start the session, but you have joined at the right time. I would like to know about you, sir, and the people who are here. Yes. Good evening, all. I am Dr. Mayank Bats. I am working as a senior specialist in Rashid Hospital as a pulmonary medicine, intensive care, and sleep medicine. I am basically from Jaipur and just wanted to learn this digital marketing course for the just for the knowledge and for individual personal purpose. Great, sir. Great. So, Dr. Mayank, you are welcome in this platform. And before that, we all have completed our introduction. People are from various fields. Some are entrepreneurs, and some are coaches, and few are students here. So actually, I'm so happy having a blending of different fields, different learnings. And I expect that the learning of you people can be put over there, and we all can get benefit of the learning and experiences we had in our businesses mutually. So that's okay. So Dr. Mayank, I'll salute you कि आप अपने busy schedule में से हमारे लिए यहाँ अपने लिए हमारे लिए भी टाइम निकाल पा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स का शेड्यूल बिजी होता है. तो चलिए, इसी के साथ जल्दी से बिना टाइम खर्च किए अब हम आगे बढ़ते हैं. आज के इस प्लेटफॉर्म पर 2 तरह के लोग हैं. मुझे टीम ने बताया है कि आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ आज के लिए इनरोल किया है. दे आर नॉट प्राइम मेंबर्स, बट यहाँ ज्यादातर लोग प्राइम मेंबर हैं. प्राइम मेंबर के एक बैच में 15 से 20 लोग हार्डली होते हैं, इससे ज्यादा बैच नहीं होता. तो पहला बैच वो है जिन्होंने प्राइम मेंबरशिप में इनरोल किया है, जो लॉन्ग ड्यूरेशन यानी मिनिमम 90 डेज का कोर्स है, बट इट कैन गो अप टू 180 डेज टू.
वो आपकी कन्वीनियंस पे। दूसरा, जिन्होंने आज ही सिर्फ 5 बेसिक एक्सरसाइजेस, बेस सेटिंग एक्सरसाइजेस के लिए एनरोल किया है, दोनों तरह के लोग हैं। जिन्होंने आज के लिए एनरोल किया है, अगले 10 मिनट उनके लिए थोड़ा कम मैटर है। प्राइम मेंबर्स के लिए 10 मिनट पूरा का पूरा डिस्कशन उनको डेडिकेट है। उसके बाद दोनों के लिए इकट्ठा चलेगा, रादर वन डे कोर्स लर्नर भी उसे समझ सकते हैं। अब मैं अगले 10 मिनट आपको वो बताऊंगा कि हम आगे लर्निंग कैसे करने वाले हैं, क्या सीखेंगे, कैसे सीखेंगे। प्राइम मेंबरशिप जिसमें आपने एनरोल किया है, द मेंबरशिप प्रोग्राम विच यू हैव एनरोल्ड इन, after enrollment you are a learning member, prime and permanent member of this learners community of Margdarshan Guru and people trainers. It's a comprehensive digital marketing mastery course being designed in 2021 for the years 2021 and ahead. 2021 के लॉकडाउन, 2020 लॉकडाउन, उसके आगे की सालों में जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग की जरूरतें होंगी, उन सबको इकट्ठा करके ये कोर्स बना है और उस कोर्स की मेंबरशिप में आप मेंबर हैं। कोर्स इज बीइंग डिजाइन्ड बाय मार्गदर्शन गुरु एंड पीपल ट्रेनर्स। इट्स अ जॉइंट वेंचर ऑफ 2 companies, and the objective of this course is the learners should have mastery and command over the digital marketing. So how they can trace the pathways and how they can identify gaps and fill those gaps and can get benefit from digital marketing. That's the objective of this course. And what is the specialty in this course? This can add a skill of digital marketing to the learners, those who will learn seriously, those who will spare little time here, they will learn the digital marketing. And you can learn. So mic is open, please. Dr. Mayank, I'm just going to off your mic. It was open. So you can control your mics, please. Whenever you require to speak, you can open it. Otherwise, you can keep it off. आपको जरूरत हो तो खोल सकते हैं, नहीं तो माइक बंद रखें। इस कोर्स में हम कम से कम 25 माइक्रो स्किल्स सीख सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन अस। सो यू विल बी टॉट minimum 25 micro skills of digital marketing, which will help you to get success in online marketing. 120 to 102 hours demo classes will remain over there, means live classes like you and we are connecting here live. ऐसे 102 घंटे की क्लासेस होंगी। 124 hours one-on-one coaching, means you can connect individually to the trainers one-on-one over phone, WhatsApp, video call, AnyDesk, Zoom. And 90 days is the tentative time to get it completed. But you can extend it up to 180 days as per your convenience. You need not to pay anything apart from the fees you have paid. The one-time fees is that 4,999, but after that, you need not to pay anything and you just have to learn as per your requirement, as per your convenience. In case you have time, come in the live classes. You have no time, you can watch the recordings. And 100% live classes will happen, and mostly on the weekends. Few of the classes happens in the evenings of week. And this is completely DPC based learning model, wherein demonstration will be given to you. You will learn through demonstration, you'll practice it, and you'll ask your questions to the trainer, and this will call a coaching. So demonstration, practicing, and coaching based learning would be here. That's the beauty of this course, which generally doesn't happen in the real classroom kind of learning. And what would remain the schedule of this course? Just a minute, I'll see. Yeah, recording is on. Schedule will remain for 90 days, will be September, October, and November. In September, we will have 5 Saturdays. I think there are 5 Saturdays. And every Saturday, 8 to 10 p.m., we would be meeting together to learn certain things. And on the Sundays, 11:30 to 2 p.m., we will be meeting for other skills. And from 13th to 24th September, there would be 6 classes in the evening on Monday, Wednesday, Friday.
7 to 8 p.m. And we would be learning there how to design and develop website. And in case you already have, then how you can maintain and update it yourself, how you can write blogs over there yourself without any technical help. These 6 classes can make you learn how you can design, how you can develop, how you can maintain, how you can write blogs over there. तो ये सारी चीजें हम वेबसाइट से रिलेटेड इन 6 क्लासेस में कंप्लीट कर लेंगे. यस संदीप जी, मैं जरूर अभी आपसे क्वेश्चंस लूंगा. And support time will be 10 to 12 a.m. Monday to Friday, all 5 days. Trainers would be available for you. You can call them between 10 to 12 telephonically, at WhatsApp, at Zoom, any desk, and you can ask for the required support. And after every class, recording will come in a mobile application which is in the name of People Trainers. It is available on Google Play Store and in the App Store also. Every next morning, the recording comes in the application and you will be assigned one batch in the application. In that particular batch, every class will come over there. Next morning, you can watch that recording in case you have missed the class or you want to repeat it or you want to revise it. And after that, you can connect with the trainer between 10 to 12 in case you have some queries or questions to clarify. In the October month, Saturday classes will remain same at this time, but the Sunday timing will get changed. Now, October onwards, all the classes on the Sundays will happen in the evening, 7:30 to 9:30. And review classes will happen Tuesday, Wednesday, and Thursday. Tuesday and Thursday, not Wednesday. Tuesday and Thursday. Review classes generally happens. In case you have time or queries, you can come over there during late evenings, 8 to 9:30. In case you have query, you want to ask something, people just get together over there and you can ask. And the similar will be in the November. The same timings will remain in the November. This way, this 3 months course will get completed, but November is the tentative time limit to complete it. In case you could not complete due to your own circumstances, you can continue it further up to 2 or 3 months more. So there is no limit because you are a Prime member. So it is a privilege to you that you can continue, you can learn, continue. You would not be charged any fees further for this. So that was the schedule. Now, what we can learn here? Yes, application name is, just a minute, I'm putting in the chat box. It is in the name of People Trainers at Google Play Store. It is in the name of People Trainers. In App Store, it will be in the name of Class Plus. So in case you have iPhone, then you search Class Plus over there. And in case you have this Google Play Store, then put People Trainers over there. And in case it asks for a code over there, then you have to put ZFWOE. This is the code over there. In case it requires, you can put it there. Now, what we are going to learn here, क्या सीखने वाले हैं हम? तो सीखने के हमारे पास यहाँ 5 स्टेप होंगे. आज इस स्टेप पर खड़े हैं हम, यानी इस एज पर, इस छोर पर खड़े हैं जो हमारे लेफ्ट साइड में है. राइट साइड में जहाँ एरो का निशान है, हम अपने डिजायर्ड स्टेट पर पहुंचना चाहते हैं. उसके बीच में हमें 5 स्टेप हैं जो हम यहाँ सीखेंगे. द फर्स्ट स्टेप विच इज गोइंग टू बी कवर्ड टुडे, आज पहला स्टेप कवर होने वाला है. और आज हम क्या सीखने वाले हैं? बेस सेटिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग. डिजिटल मार्केटिंग में आगे बढ़ने से पहले हमें एक अच्छा फाउंडेशन क्रिएट करना होता है सो दैट हम बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ सकें. कुछ फंडामेंटल चीजें फिक्स करनी पड़ती हैं. दोज थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू डू, एंड ये 5 चीजें आज हम यहाँ करेंगे. देन कल सुबह संडे मॉर्निंग की जो क्लास होनी है,
that class will be dedicated for gaps analysis, wherein we will analyze what is the requirement to get success for us individually in the domain we are, what we actually would require to get success, and what we have. What we have and what is required, what is the gap between these both the things, and those gap filling would be done in next 2.5 months time. Required resources and skills development will happen in next 10 weeks, 10-11 weeks. And just together with this, we will be practicing this 4th and 5th step, which is practicing digital marketing and monitoring, reviewing, analysis, and retargeting of the digital marketing. So these are the basic 5 steps. Anywhere, wherever you want to learn this, so these steps will remain over there. The things will get changed. And the beauty of this course is that the thing which we do in the first 1 week, so that's a wonderful exercises. In case we could do them, so in future we get a good kind of foundation, so that we should not distracted, we should not go away from the track. तो ये हमारा 5 स्टेप का प्रोसेस है जो हमें सीखना है. आपको अगर ये प्रोसेस, किसी को पिक्चर लेनी है, किसी को पिक लेना है, किसी को, तो आप यहाँ से ले सकते हैं. प्लीज आपको ये पीपीटी नहीं मिलेगी, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी. तो जो कुछ आपको नोट करना है, प्लीज कीप अ पेन एंड पेपर विद यू. यू कैन पुट इट ओवर देयर और यू कैन टेक अ पिक ऑफ दिस. यू आर अलाउड फॉर दैट. ये 5 स्टेप हमने यहाँ से सीखने हैं. एंड व्हाट इज डिफरेंट इन दिस कोर्स, वो हमने सीख लिया था. एक्सपर्ट ट्रेनर्स कम एंटरप्रेन्योर्स की डिलीवरी है. आप अपने पेस पर सीख सकते हैं. आपको जब सीखना है जब सीखें. यू आर फ्री एंड फ्लेक्सी लर्निंग है. आपके सारे लेसन्स बाइट्स में हैं, इंफॉर्मेशन बाइट्स हैं, चंक्स में हैं, और आपको सारी चीजें एक साथ नहीं सिखाई जाएंगी. छोटी छोटी एक स्किल सिखाई जाएगी. नो बुक्स, नो रेफरेंस बुक्स, नो रीडिंग, नो थ्योरी क्लासेस, कुछ नहीं. सब प्रैक्टिकल, सब डेमोन्स्ट्रेशन होगा. एंड स्किल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इज द टारगेट हियर. नाउ about this course, in case you have any question, you can ask for 2 minutes. Then we will go to cover our first module today. आज यहाँ आपको कोई प्रश्न हो आज के इस सेशन से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं. अदरवाइज हम आज की लर्निंग में आगे बढ़ेंगे. एक मॉड्यूल आज कंप्लीट करने वाले हैं. बेसिकली सर, बेसिकली चाहे वो सितंबर हो, अक्टूबर हो, नवंबर हो, वीकेंड क्लासेस ही होनी है. जो आप रेगुलर जो कोर्स कराओगे वो वीकेंड क्लासेस में है. जो बाकी टाइमिंग्स बन रहे हैं वो सिर्फ सपोर्ट के लिए. इज इट लाइक दिस? एब्सोल्युटली. सिर्फ एक क्लास को अगर मैं छोड़ दूं, जो 15 दिन की वेबसाइट की क्लास, 13 से 24 को छोड़कर सिर्फ सैटरडे संडे को हमें क्लास, सैटरडे संडे क्लासेस हैं. क्योंकि जो सैटरडे संडे में आप सीखेंगे उसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको टाइम चाहिए. और आप सब वर्किंग पीपल हैं. एक रफात को छोड़ के सब वर्किंग हैं. और वर्किंग लोग 5 दिन 6 दिन काम करते हैं. इतना टाइम नहीं मिलता कि वो जो आज बताया वो एग्जैक्ट एक दिन में कर लें. और ये टेक्निकल सेशन है जहां आपको बिना प्रैक्टिस किए कुछ आएगा नहीं. तो 4-5 दिन आप प्रैक्टिस करें, पूछें, वीडियो देखें, समझें, कुछ ऑनलाइन एक्सप्लोर करें, तो वो स्किल आपके पास थोड़ी पक्की हो जाती है. वेरी ट्रू. यस. फिर हम इसमें आगे बढ़ते जाते हैं. और 7 दिन में अगर किसी की मिस भी हो गई है तो कल कोई ट्रेवल में है, कल कोई वीडियो देखेगा, परसों देखेगा, फिर पूछेगा, तो सबको थोड़ा साथ आने का वक्त मिल जाता है. जी सर, ये रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम रहेगी क्या अपने हमारे पास? रिकॉर्डिंग, so I can say it would be lifetime, but ये एप्लीकेशन अगर हमारा चेंज हुआ, कल को कुछ होता है तो वहां कुछ प्लस माइनस हो सकता है. अदरवाइज जब तक एप्लीकेशन चल रहा है एक्सेस विल रिमेन टू यू. ओके. हाँ, तो उसको लाइफ टाइम आज हम कहते हैं तो वो कमिटमेंट ऐसा होगा कि 2 साल बाद हमने ऐप चेंज किया या कुछ हुआ
तो उस टाइम पर टेक्नोलॉजिकली हमें क्या करना पड़ेगा, कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड करें, पर नहीं कर पाए तो वो कमिटमेंट फेल ना हो, इसलिए मैं लाइफ टाइम नहीं कहूंगा इसे। बट जब तक आप इसके सीखने के आदी हो जाएंगे, मतलब आप इसको प्रैक्टिस कर सकेंगे, और फिर शायद आपको देखने की जरूरत ना पड़े, और पड़ेगी भी तो हम अवेलेबल होंगे। एक बार क्या हैंड टू हैंड वर्किंग हो गया तो फिर जरूरत नहीं, लेकिन यस यस एब्सोल्युटली, फॉलोअप के लिए हो सकता है लगे तो। हाँ, फॉलोअप के लिए फिर ऐसा है ना कि आप 1 साल बाद आपको कुछ पूछना है तो बेटर होगा कि आप फोन करके 5 मिनट में क्लियर कर लें, बजाय 1.5 घंटे की क्लास देखने के। जरूर जरूर। हाँ, तो वो ही ज्यादा बेटर होगा। चलिए, तो इस अभी किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई वुड लाइक टू गो फर्दर फॉर द नेक्स्ट लर्निंग। ओके, हाँ ठीक है डॉक्टर मयंक, हम कोशिश है कि हम लाइफ टाइम में, बट कमिटमेंट ऐसा करें जो फुलफिल कर सके। मेरा पर्पज सिर्फ इतना है। रादर अभी मुझे लाइफ टाइम कहने में कोई इश्यू नहीं है, बट 2 साल बाद अगर मेरा ऐप को आगे पीछे करना पड़ा, कहीं कोई इश्यू हुआ तो फिर हो सकता है। Otherwise, we have preserved all the recordings with us, and we can provide it to you whenever you will ask lifetime. We would be having those all the recordings. चलिए, इसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं। The module 1, let's start 5 basic base setting exercises we are going to do here. आज 5 बेसिक चीजें हमें करनी है। इसमें से हो सकता है हम में से कुछ लोगों ने कुछ कर लिया हो, बट जिन्होंने कर लिया वो उसे रिवाइज कर सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं, और जिनका नहीं है वो आज कर सकते हैं। जिन लोगों ने पिछले महीने ये एक्सरसाइज की थी वो भी देख सकते हैं पिछले महीने से अब तक उनकी बेसिक सेटिंग में कितनी बढ़ोतरी हुई है। यस, एंड पेन पेपर वाटर बॉटल आई थिंक यू ऑल हैव, तो आपका डिस्ट्रैक्शन ना हो, लेट्स मूव अहेड। So, Mr. Vivek, are you comfortable with this Hindi conversation? In case you want 100% English, so we can. Yes, sir, I am comfortable. Okay, great, wonderful. Sorry, my actually here is completely raining, so signal is. Pardon? Signal issue is there here, so it's a raining here. Okay, not a problem. So the class is getting recorded. In case you just skip something, so don't worry. Yeah. You can Okay, watch it thank you. later on at your convenient time. Otherwise, you can connect me over phone tomorrow morning. Not tomorrow morning. Tomorrow is Sunday and we would be in the class. Monday onwards, I'm available. Okay. So Thank now, okay, welcome ji. So what we are going to learn, let's change the direction. How to start earning online. How to start growing ourselves with the help of digital marketing. 3, product setting. 4th, customer identification, and 5th, business goal setting. These are the 5 basic exercises we are going to do, and just be with me. And today and tomorrow, that is not a so much technical class, and you can say that there is little bit theory part. But after that, everything will be technical and skill based and demonstration based things. So because these are the basic foundation making classes, so you can say the theory will be little more, so don't be distracted from this. आजकल बस थोड़ी देर ये बेसिक चीजें जब हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ थोड़ा थ्योरी ज्यादा हो सकता है, उसके बाद सब प्रैक्टिकल होगा, ऑनलाइन होगा। यस, सो आपके स्क्रीन पर 10 रुपए के लिए पहला सवाल, इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता। What is digital marketing? I would like to know from you people, and I would expect one answer from everyone. You can put in the chat box or you can open a mic. What is digital marketing as per you? Combination of all. Combination of all. All what? डिजिटल चीजों से हम लोग जो भी इलेक्ट्रॉनिकल चीजों से जो भी हम लोग मार्केटिंग करते हैं, जैसे कि अपना व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, और उसके लिए हम लोग मोबाइल कंप्यूटर जो भी यूज करते हैं, वो सारा डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। ओके, मेरे पास बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं और मैं पढ़ के जल्दी से थैंक यू सर, थैंक यू जिन्होंने भी जवाब दिया। संदीप कांकरिया जी, मार्केटिंग डन ऑन सोशल मीडिया चैनल्स, ऑनलाइन प्रेजेंस ऑफ एनीथिंग रिलेटेड टू इंटरनेट मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। Deepika, advertising itself is not marketing, means advertising is a one part of this.
Marketing done on social media apps, yes, absolutely. Presence online, yeah, absolutely. Marketing products and services using digital mode. Subham, are you comfortable with English? या हिंदी और बढ़ाएं? I am comfortable, sir. Sure, No sure. problem. Thank you. Thank you. Marketing products and services using digital mode. Yes. Online media. Wonderful. Dr. Mayank, marketing through social media. Absolutely. Marketing, e-marketing, social media marketing. Shushma Singh ji, online promotion. Wonderful. सारी बातें आपने कह दी. अब मेरे लिए जो बचता है वो मैं बता देता हूँ. What is digital marketing? Simple online promotion of brand, business, individuals, professionals, services, products, connecting with potential customers at internet. इंटरनेट पे आप अपने ग्राहक ढूंढें, उनसे जुड़ें, उनको बेचें. That is digital marketing. Marketing is a word, actually it comprises both the things, advertising and sales. Both are a part of this. So connecting with potential customers means exploring potential customers, influencing them and persuading them, attracting them and convert them into your customers, retain them. यानी आपने एक बार बेच दिया तो उसको जोड़ के रखो गोंद की तरह, वो भी चाहिए आपको. तो लोगों को कैसे ढूंढना है, पकड़ना है, फिर उनको अपनी तरफ आकर्षित करना है. वो जो दूसरों से खरीद रहे हैं, फिर वो आपसे खरीदें, आपसे सर्विस लें, आपके प्रोडक्ट्स यूज करें, आप फेमस हो वहां, और उसके बाद आप जब उनको बेच दें, वो आपसे खरीद लें, वो आपके हो जाएं, आप उनके हो जाओ. फिर ये बंधन आपका आगे तक चलता रहे, वो आपके कॉम्पिटिटर्स के पास ना भागें, ऐसे ऑफर्स आप उनको दें, और ये सब ऑनलाइन हो रहा हो, इंटरनेट पे हो रहा हो. दैट इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग. And marketing campaigns involving digital communication. Actually, what you are doing, you are sitting in UAE, Dr. Mayank is in UAE, and Sandeep Arora is sitting in Pune, and Subham is sitting in Bahraich. But you are catering, you might be catering people around the globe. दुनिया के किसी भी कोने में लोगों को सर्विस देना चाहते हो, तो आप कर क्या रहे हो? डिजिटली कम्युनिकेट कर रहे हो. सिंपल. It has multiple tools. Digital marketing has multiple tools to capture attention of prospects. Prospects means sambhavit grahak. And focus is how individual tool, how website, how Telegram, how this Facebook, how Google, how your WhatsApp can convert them into customers. कुछ लोग WhatsApp से convert होंगे, कुछ वेबसाइट से convert होंगे, कुछ Telegram से convert होंगे, कुछ email से convert होंगे, कुछ टेलीफोन कॉल से कन्वर्ट होंगे. ये सब कैसे, सारे टूल्स को आप कैसे एक साथ रख के अपने लिए उसका बेनिफिट उठा सकते हो, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग. एंड व्हाट आर इट्स पावर्स? व्हाई वी आर लर्निंग इट? बिकॉज इट हैज पावर्स. क्यों सीख रहे हैं हम? क्योंकि इसमें ताकत है. और ताकत क्या है? एंड दैट इज द क्वेश्चन ऑफ रुपीज, क्वेश्चन फॉर ₹100. दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर, क्या ताकतें हैं डिजिटल मार्केटिंग की? आई वुड लाइक टू आस्क इट फ्रॉम यू. यस प्लीज, यू कैन पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स और यू कैन ओपन योर माइक. क्या ताकत है? यस, ₹100 का सवाल. So within limited time we can reach to many audience via internet. वंडरफुल, ग्रेट दीपिका. कम समय में ज्यादा लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, लोकल टू ग्लोबल विद इन सेकंड. सैयद जीशान साकिर जी, ग्रेट ग्रेट, सैल्यूट सर. आउट ऑफ बाउंड्रीज मार्केटिंग, यस. गोयल आसी, यस. इट स्प्रेड्स. मैम आप अपना नाम चेंज ही कर लें तो यहाँ बड़ा इजी होगा. So my name is Ashi Goyal. I am Ashi this side. Okay, great. Sandeep ji, it spreads with maximum speed. Yes. And Dr. Mayank, LinkedIn, FB, WhatsApp, and Google. Absolutely. Okay, great. And it's best potential for marketing. Yeah, absolutely. चलिए, आप सबको सैल्यूट. जिन्होंने आंसर किया मैं उसको सबको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने इतने लोगों में से कोशिश की है. लेस टाइम, मोर रीच, लेस इन्वेस्टमेंट, मोर रिटर्न. और सबके आंसर सही है. यू कैन फाइंड मोर प्रोस्पेक्ट्स ऑनलाइन. एब्सोल्युटली. ओके, व्हाट आर इट्स पावर्स? नाउ इट्स माय टर्न. आप सब ₹100 के हकदार हैं, आप सब जीत गए. चलिए, जब भी हम साथ मिलेंगे, इकट्ठे मिलेंगे, वो ₹100 इकट्ठे करके पार्टी करेंगे.
come on, reaching to the large mass of people within limited time. शुभम, great. विनायक साथी जी, ग्रेट. अच्छा, जब मैं आपका नाम लेता हूं ग्रुप में, आप आंसर करते हो तो आपको ऐसी फीलिंग आती होगी बड़ी अच्छी सी, अच्छा मैंने सही आंसर दिया है, 100 रुपए जीत गया. आपको एक अच्छा सा एक्सपांसन आता होगा, फीलिंग आती होगी. ओके, गेट इट. वो 100 रुपए से ज्यादा है, प्लीज आप उसको महसूस कीजिएगा. चलिए, मेरी टर्न है अभी. तो कैसे? यस संदीप जी, ग्रेट. अब मैं इसका जवाब आपकी स्क्रीन पर देखें कि इसका जो जवाब है वो क्या है. आप सबने सारे जवाब दे दिए, मेरे हिस्से का एक बचा है, बस वो मैं दे देता हूं. हाउ मेनी कॉन्टैक्ट्स यू हैव इन योर कॉन्टैक्ट्स और कस्टमर लिस्ट. आप ईमानदारी से बताएं कि आपके पास कितने लोगों के कॉन्टैक्ट्स हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिनको आप बेच सकते हो. हाउ मेनी पीपल यू नो जिनको आप बेच सकते हो, जो आपसे खरीदते हैं, जो आपके कस्टमर हैं, जो कस्टमर हो सकते हैं. कितने लोग हैं आपके पास? एक टेंटेटिव सा आइडिया प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स. कितने लोग हैं आपके पास? प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स. टेंटेटिव फिगर 1000, 1500, 5000. दीपिका, ग्रेट. दीपिका का नंबर अभी तगड़ा है. यस, बाकी सब प्लीज प्लीज. ये सवाल बहुत. डॉक्टर मयंक 10,000, रफात के पास 2000 है, विवेक जी के पास 1500 से 1800 है, और सबसे बड़ा नंबर डॉक्टर मयंक का गया. यस, एंड संदीप जी का 1000, शुभम का 2000, 6500 संदीप कंकरिया जी का, सन्मीत जी का 10,000, मोनिका जी, यह डॉक्टर मयंक और संदीप सन्मीत कौर जी आपके पास 2000, मतलब 10,000 की लिमिट है. चलिए, ग्रेट. अब क्या आप समझते हैं कि इन 10,000 लोगों से हम पूरी जिंदगी जितनी हमारी डिजायर्ड बिजनेस का टेन्यूर है या जो टर्नओवर है, क्या वो हम पा सकते हैं? इज दैट एडिक्वेट? क्या इतने लोगों से हमें वो बिजनेस मिल सकता है जितना हम अपने लिए चाहते हैं? मैं बिल्कुल ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ग्राउंड की बात कर रहा हूँ. सन्मीत कौर जी ने लिखा 10,000 लोग हैं, और वो कहती हैं हाँ, मुझे 10,000 लोगों से उतना बिजनेस मिल सकता है जितना मुझे चाहिए. ठीक है मैम, आपने यस कहा, पर मैं बताता हूं कि आपके पास डिजिटल मार्केटिंग से अगर आप पावर्स इसकी देखने चाहें, यस विनायक जी ने कहा ज्यादा चाहिए, तो मेरे पास अगर मैं आज पूरी अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट को खंगालूं तो मेरे पास आज भी 75,000 से ज्यादा लोग नहीं हैं. इतने सारे कॉन्टेक्ट्स के होते हुए भी मेरे पास 75,000 से ज्यादा लोग नहीं हैं. बट मुझे अपने बिजनेस के लिए कितने लोग चाहिए, मुझे ये भी पता नहीं है. मैं अभी आपके साथ खड़ा हूं, हमें नहीं पता कि हमें अपने बिजनेस के लिए कितने लोग चाहिए. आप में से किसी को पता है कि आपको अपनी बिजनेस सक्सेस पे, जो आप अपनी जिंदगी में जिस डिजायर्ड स्टेट पे जाना चाहते हो, वहां तक पहुंचने के लिए जो बिजनेस करना चाहते हो, उसके लिए कितने लोग चाहिए? इन केस आप में से कोई जानता हो, प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स. नहीं, बट ये फैक्ट है. अब डिजिटल मार्केटिंग की पावर क्या है, मैं इसको हल्का सिंपल करता हूं सवाल, बाकी बात बड़े सवाल को मैं आगे लूंगा. What digital marketing can do, what powers it has globally, because it we talk globally. Whenever we talk about digital marketing, it is globally same for each of us. आउट ऑफ 7.9 बिलियन, 7.9 अरब लोगों में से धरती पर 4.7 बिलियन, अराउंड 5 अरब, 5 अरब यानी 8 में से 5 अरब यानी 60 to 65% पूरी दुनिया के लोग इंटरनेट पर आ गए हैं. एंड दैट इज द स्टैटिक्स. आई एम नॉट सेइंग दिस, इट्स स्टैटिक सर्वे. ये स्टैट्स है. 5 अरब लोग 8 अरब में से इंटरनेट पे आ गए हैं, और वो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोग उनसे जुड़ रहे हैं, वो लोगों से जुड़ रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, वो बेच रहे हैं. सारे नहीं, बट 8 अरब में से 5 अरब लोग. हमारे पास ये संभावना है कि 5 अरब लोग जो इंटरनेट पर आ गए हैं, उसमें से, इस समंदर में से जितनी बाल्टियां पानी भरना है हम भर सकते हैं. हमारे पास वो अवेलेबिलिटी है. डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं, जबकि हम फिजिकल मार्केटिंग से
करोड़ों लोगों तक पहुंचना बहुत टाइम टेकिंग और बहुत एक्सपेंसिव था। यहां हमें लोगों के साथ जुड़ना करोड़ों लोगों के साथ कम एक्सपेंसिव और कम टाइम टेकिंग है। ये इसकी पावर है। इसी एक उत्तर में आपके सारे उत्तर समा जाते हैं। सारे प्रश्नों का हल एक ही उत्तर में है कि यहाँ भीड़ है, दुनिया है, लोग हैं, ग्राहक हैं, जिनको आप ढूंढ रहे हो वो भी इन्हीं में से हैं। तो आपके पास पावर है इसकी कि दुनिया के ज्यादातर लोग ऑनलाइन आ गए हैं, इंटरनेट पर आ गए हैं। इंटरनेट का सस्ता होना, स्मार्टफोन की अवेलेबिलिटी ने ये इजी कर दिया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू चेज किया जा सके। दैट इज द पावर ऑफ दिस। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर, इस पावर को मैं कितनी यूज करता हूं, आप कितनी यूज कर रहे हो? प्रश्न यह है कि पावर तो है 5 अरब लोगों के साथ है, पर मैं इन 5 अरब लोगों के साथ इनमें से, इस समंदर में से कितनी बाल्टियां अपने लिए भर रहा हूं? तो उत्तर है, आंसर इज कितना। हम ऑनलाइन की पावर को कितना यूज कर रहे हैं अपने लिए? आई विल आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम यू। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हम ऑनलाइन का कितना फायदा अपने लिए उठा रहे हैं? कितनी पावर्स हम यूज कर रहे हैं? प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स, नॉट इवन अ ड्रॉप। सैयद जीशान शाकिर जी, ग्रेट, थैंक यू सर, आपने सबसे पहले पहल की है। संदीप अरोरा जी ने लिखा मिनिमम, विनायक जी ने लिखा 5%। प्लीज सब लिख दें, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। आप लिखते हो तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि आप भी नॉट मच। आनंदिता जी, यस, लिखो 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 लिखो। जी, बस 5 जवाब आए। चलिए मैं आपके जवाब दे देता हूं। यस, दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, वी यूज दिस पावर टू कनेक्ट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली daily. We use this power for entertainment almost daily. We use its power to sending emails twice or thrice a week. For those who are in the job, those who are in the business wherein they have to connect on emails, they might be writing daily. Booking online food once a week or twice a week. Online shopping twice a week. इतने काम में हम इस ऑनलाइन की पावर को यूज कर रहे हैं। अब आप देखें, इन सारे कामों में मैं सही हूं क्या? आप बता सकते हैं कि जो मैं लिख रहा हूं आप इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर रहे होंगे। इन कामों के लिए हम ऑनलाइन की दुनिया को, इंटरनेट को, ऑनलाइन के पावर्स को यूज कर रहे हैं। यस, विनायक जी ने मेरी सी बात कही, धन्यवाद विनायक जी, आप मेरे साथ हैं। कम ऑन, बिल्कुल सही। संदीप जी ने भी कहा, यस, बहुत बढ़िया। चलिए, जरूरी नहीं है जो मैं कहूं वो आप सच कहें। अगर आपको लगता है कि मैं सही नहीं कह रहा तो प्लीज रोक सकते हैं, आपको बिल्कुल राइट है इसका, आप अपना मत दे सकते हैं। बट ये सारे काम जो हम डिजिटल कर रहे हैं, वट एवर वर्क्स वी आर डूइंग, वट एवर पावर्स वी आर यूजिंग ऑफ ऑनलाइन वर्ल्ड, what is the end result actually? End result is spending. We are spending our money for luxury, we are spending our money for food, we are spending our money for our clothes, we are spending our money for entertainment. We are just buying fruits from there. Fruits means luxuries. ऑनलाइन की दुनिया को हम ज्यादा यूज कर रहे हैं खर्चे के लिए, खर्चे के लिए। ये सच है, this is fact. Majority of the people are using this for fruits, means spending, expenditures. But the flip side is this: people are earning from the people like you and me. On the other side, on the flip side, there are people who are making money from here and we are spending money. They are making money. That is the difference. And they are making huge money. Amazon is making huge money. Flipkart is
making huge money. Zomato, Swiggy, Food Panda, they're making money. But we are doing expenditure. Rather, we are working since last 20 years or 25 years before Zomato, Food Panda, everything. But still we are making expenses over there. And they are earning from us. उनके IPOs आ रहे हैं और हमारे POs भी नहीं. Then what we should do? The time has come. This COVID-19, COVID-20, COVID-21 has taught us, this lockdown has taught us that the time has come when we professionals should add one wing of online marketing. We should use the powers of this online world to grow our profession, career, or business to earn more, to connect with the more people. And the years ahead, after 2021 to 25, it gets estimated by the experts that the online earning will get thrice. 3 गुनी बढ़ने वाली है अगले 4 सालों में. तो हम सबके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम डिजिटल मार्केटिंग को as a routine, as an essential wing of our business ऑप्ट करें, यूज करें, आगे बढ़े. अभी तक जिसको खर्चे के लिए यूज करते थे, अब कमाने के लिए यूज करें. बट whenever we think to earn from this, the question arises, how I can use its power to grow? मैं कैसे कर सकता हूं? Yes, तो आंसर है marketing and selling digitally more and more. Every one of us is required selling and marketing. In whatever profession we are, whether we are a coach, whether we are a doctor, whether we are an entrepreneur, whether we are an industry owner, or we are a student, or we are parents, everyone requires selling skills, marketing skills. अगर हमें selling और marketing नहीं आई, आप कोर में कितने ही अच्छे हों, पर आप पीछे रह जाओगे. डिजिटल मार्केटिंग का इतना बढ़िया फंडा है कि you need not to face people, you need not to go anywhere, you have to do this exercise at your home or your office or your clinic only. And you do not hesitate, you do not require to hesitate, you should not hesitate. Come out from yourself, break yourself, and start learning selling and marketing. From whom, to whom, and from whom? Everyone is selling. Narendra Modi ji, Honorable Prime Minister, he's selling. Behno or bhaiyo, whenever he speaks like that, people love him. लोग उसके मुरीद हो जाते हैं. यानी आप जिसको भी अच्छा समझते हो, जिस मोटिवेटर को, जिस मोटिवेशनल स्पीकर को आप सुनते हो, क्या करता है वो बोलता है और आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो. वो खुद को बेचते हैं और आप उनको खरीदते हो. यही काम हमें सीखना है, लोगों पर अपनी पैठ बनानी है, और वो डिजिटल मार्केटिंग से आप आसानी से बना सकते हो, क्योंकि कहीं जाने की जरूरत नहीं है. कम टाइम में आप लोगों को ज्यादा मार्केट कर सकते हो. मार्केटिंग मीन्स इन्फ्लुएंसिंग पीपल, सेलिंग मीन्स अट्रैक्टिंग पीपल एंड कन्वर्टिंग देम. इन्फ्लुएंस बढ़ाना है आपको अपना. कैसे बढ़ाना है मैं बताऊंगा. ये इन्फ्लुएंस बढ़ाना डिजिटल मार्केटिंग की कोर बता रहा हूं मैं. नाउ द सेकंड क्वेश्चन आंसर्ड एंड थर्ड क्वेश्चन अराइजेस हियर, व्हाट टू सेल. क्या बेचें? आपने कह दिया बेचना सीखो. अब बेचना मेरा काम थोड़ी था. मैं तो कोच हूं, मैं एंटरप्रेन्योर हूं. बेचना तो मेरी टीम बेचती है. नो, यू हैव टू लर्न. किसी भी प्रोफेशन में हो आप बेचना सीखो. एक डॉक्टर अपने पेशेंट से मुस्कुराकर उसकी सारी बात पूछ लेता है, वो पेशेंट उसका होके रह जाता है. क्या किया आपने? बेच दिया. आपने बेच दिया अपने आप को, और वो पेशेंट जिंदगी भर आपका होके रह जाता है. लोगों को हंस के खुशी होके कहता है,
कभी किसी की कॉल आई और आपने पहचान लिया, आपने पूछ लिया कैसे हैं आप, आपका पेट दर्द अब ठीक है? ओ माय गॉड, वो मुरीद हो जाता है कि इतने बड़े डॉक्टर ने मुझे ये पूछ लिया, उनको अभी तक मेरी शक्ल याद है, मेरी आवाज याद है। ओ माय गॉड, क्या कर रहे हो आप बेच रहे हो अपने आप को। जब आप बेचना शुरू कर दोगे, लोग आपको खरीदना शुरू कर देंगे, आपको सिर पे बिठा लेंगे। तो आपने बेचना सीखना है, और डिजिटली बेचना ज्यादा इजी है, ज्यादा लोगों को बेच पाओगे। कैसे? बस छोटे छोटे से आपको प्रयत्न करने। नाउ व्हाट टू सेल, क्या बेचें? तो पहला आंसर है खुद को बेचो, खुद को बेचो। जब खुद को बेचना सीख जाओगे, फिर प्रोडक्ट बेचो, सर्विस बेचो। लोग आपके प्रोडक्ट और आपकी सर्विस से पहले आपको देखते हैं। आपको, भाजपा से पहले नरेंद्र मोदी को देखते हैं, कांग्रेस से पहले राहुल गांधी को देखते हैं, हॉस्पिटल से पहले डॉक्टर को देखते हैं। डॉक्टर ऑपरेशन कब करेंगे वो तो बाद में, अभी तो डॉक्टर से जो बात करके पेशेंट और उसके घर वालों को जो तसल्ली मिल रही है, वो उसे खुदा समझने लगते हैं। अगर डॉक्टर रूड बात करता है तो उनको शक होने लगता है, उनका ट्रस्ट नहीं बैठता। तो आप पहले खुद को बेचो, फिर आपको एक प्रोडक्ट या सर्विस। अब प्रोडक्ट या सर्विस कैसे? कुछ लोगों का अभी तक डिसाइड नहीं होगा, कुछ लोगों का डिसाइड है। तो उसमें से मैं आगे ले जाना चाहता हूं आपको कि जो प्रोडक्ट आप ऑफलाइन में बेच रहे हो, ऑनलाइन में प्रोडक्ट बेचने में बहुत डिफरेंस है। जो आप ऑफलाइन बेच रहे हो उसको एज इट इज ऑनलाइन नहीं बेच सकते। बेचोगे, लोग खरीदेंगे नहीं। आपको ऑनलाइन के लिए कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें सेट करनी पड़ेंगी। तो आगे आप अब मेरे साथ जितनी देर रहेंगे, मैं आपको वो चीजें सिखाता हूं जो आपको डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेस दिलाएंगे। ये 5 बेसिक सी एक्सरसाइजेस हैं, जिनके पास पहले से कुछ किया हुआ है वो उसे रिवाइज कर लेंगे, और जिनके पास नहीं है वो तैयार कर लेंगे। तो पहली एक्सरसाइज आपके स्क्रीन पर ये है कि आप अपने प्रोडक्ट को प्रिसाइसली तैयार करो। प्रिसाइसली, जैसे आप प्रोडक्ट की डेप्थ में जाओ। अगर आप 10 तरह के काम करते हैं और डिजिटल मार्केटिंग करनी शुरू कर दी आपने कि मैं ये 10 काम करता हूं, मेरी बात मानना, मैं एक्सपीरियंस बेस कह रहा हूं, आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी, लीड्स नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। अगर आप एक साथ बहुत सारी चीजों को प्रमोट करने की कोशिश करोगे, लोग नहीं ग्रोथ देंगे आपको। डिजिटल मार्केटिंग से आपको फायदा नहीं होने वाला है। फिर क्या करना पड़ेगा? आप अपने प्रोडक्ट को प्रिसाइज करो, शार्पन करो उसको थोड़ा। कैसे? मैं थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूं। लाइक डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपको जाना है तो आप पूरी की पूरी डिजिटल मार्केटिंग को लेके चलोगे तो बहुत बड़ा कंपटीशन फील्ड हो जाएगा आपके लिए। रादर आप पूरी डिजिटल मार्केटिंग, आपको क्या करना है, एक माइक्रो प्रोडक्ट, माइक्रो स्किल, माइक्रो सर्विस ऐसी जिसका कोई कंपटीशन ना हो, जिसमें आप सबसे अच्छे हो। लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग। आपने देखा होगा लोग वीडियो मार्केटिंग ही करते हैं। वेब मार्केटिंग के एक्सपर्ट अलग हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के एक्सपर्ट अलग हैं, सोशल मीडिया के एक्सपर्ट्स अलग हैं। इवन इसमें भी लोग व्हाट्सएप के एक्सपर्ट हैं, वीडियो में भी एनिमेशन के एक्सपर्ट हैं, इन्फोग्राफिक्स के एक्सपर्ट हैं, कुछ एडिटिंग के एक्सपर्ट हैं, कुछ शूटिंग के एक्सपर्ट हैं, माय गॉड, कास्टिंग के एक्सपर्ट हैं। अगर आप गारमेंट्स के बिजनेसमैन हैं तो मेंस वियर, वुमेन्स वियर, किड्स वियर, पार्टी वियर, कैजुअल वियर, किसी एक चीज को लेके आगे बढ़ो, फिर उसकी छाया में आप कुछ भी बेच देना। रिलायंस ने पहले एक बेचा, अब वो सब्जी भी बेच देता है क्योंकि नाम आ गया। पर पहले वो सब्जी भी बेचना शुरू करता तो नहीं बिकती। लाइफ कोचिंग अगर करते हैं आप, लोग कहते हैं मैं लाइफ कोच भी हूं, लोग कहते हैं मैं योगा कोच भी हूं, लोग कहते हैं कि मैं 5 तरह की कोचिंग करता हूं, पेरेंटिंग कोच भी करता हूं, एग्जीक्यूटिव कोचिंग भी करता हूं, करियर कोचिंग भी करता हूं। नो, नॉट एट ऑल। आपको लोग नहीं तवज्जो देंगे। आप एक काम करो प्लीज, एक छोटा काम,
एक काम जिसमें आप सबसे अच्छे हो उसका माइक्रो लेबल तैयार कर दो। अब मैं आपसे पूछूंगा, ये एक्सरसाइज आपके लिए है। पहली एक्सरसाइज, आप मुझे अपना प्रोडक्ट चैट बॉक्स में लिखें कि कौन से प्रोडक्ट को लेके आप डिजिटल मार्केटिंग में उतरना चाहोगे, जो आपका सबसे बेस्ट होगा। अब मैं ये आपको बताऊंगा कि आप उसमें, यस नीस बिल्कुल सही कह सकते हैं, बिजनेस कोचिंग। सन्मीत कौर जी, बिजनेस कोचिंग में भी अगर आप थोड़ा और डेप्थ में जा सकते हो तो जा सकते हैं, बिजनेस कोचिंग। ये फील्ड भी बहुत बड़ा हो रहा है। स्लीप मेडिसिन, डॉक्टर मयंक, बहुत बढ़िया डॉक्टर मयंक, यहां मैं स्लीप मेडिसिन में आ गए आप, बहुत अच्छी बात है, बहुत माइक्रो लेवल पे ले गए आप इसको, ग्रेट। सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हो गया गोयलासी, यस। रिटायरमेंट प्लानिंग विनायक साठे का हो गया, नाइस, बहुत बढ़िया। पहले एक्सरसाइज में तो सब पास होते नजर आ रहे हैं, माय गॉड। सेमी प्रीसियस स्टोन्स, ये सेमी प्रीसियस स्टोन्स, यस ठीक है, हो सकता है, ग्रेट। थोड़ा और इसको रिफाइन कर सकते हैं आप। इस वर्ड से, इन 3 वर्ड से थोड़ा अट्रैक्शन कम बनता है सुषमा जी। मैं एक लेमैन की तरह आपको फीडबैक दे रहा हूं, आप इसका एक अट्रैक्टिव नाम बनाओ। सन्मीत कौर जी, ओके। बिजनेस कोचिंग फॉर फ्रीलांसर्स एंड प्रोफेशनल्स, यस अभी ठीक आया संदीप जी, बिल्कुल ठीक। इलेक्ट्रोलाइट फॉर बैटरी, संदीप खंखरिया जी। योगा फॉर स्ट्रेस फ्री लाइफ फॉर अडल्ट्स, ओके। अडल्ट्स में बहुत बड़ा दायरा लिया आपने, आप वर्किंग प्रोफेशनल्स को लो मैम, या तो और छोटा करो इसको, वर्किंग प्रोफेशनल्स को लो या हाउस वाइफ्स को लो, एक प्रोडक्ट जिस पे आप बहुत अच्छे हो। Sanmeet Kaur, help business owners to grow their sales, improve profit and help them run their business on autopilot. Great, आपका ये ठीक है। Grow their sales, improve profits, ये भी बड़ा पोर्टफोलियो सन्मीत जी, इसको थोड़ा सा और प्रिसाइज करें। रादर इसको 1-on-1 टॉक कर सकते हैं आप। इस एक्सरसाइज को करने के लिए वी कैन टॉक 1-on-1 मंडे ऑनवर्ड्स। वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग कोर्स, ओके। सो विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइनिंग हो गया आपका, विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइनिंग काइंड ऑफ हो गया पंकज पाटिल जी, ग्रेट। तो यहां आप और शॉर्ट जितना कर सकते हो, जितना प्रिसाइज कर सकते हो उसको, जितना प्रिसाइज कर सकते हो उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। लाइक आई कैन गिव यू वन एग्जांपल। देयर इज वन ऑफ माय फ्रेंड एंड ही इज अ डॉक्टर and he is doctor of Ayurveda. He has done BAMS. So when I met around 10 years ago in Jaipur, he is also in Jaipur, Dr. Mayank, so I can share one example. So I met with him and now I see he almost always 6 to 7, 8 months he remain out of India and just come to Jaipur for 3-4 months. And he has specialized himself in back pain only back pain. Rather, in his hospital, every kind of pain is being relieved and they do treatment of every kind of pain. But he started with back pain. And when I met him, so I met with a patient and I sent multiple patients, many patients to him. And he just got mastery in relieving back pain. So that was one technique. So whoever went to him, almost everyone, or those I know, so they got relief from the pain, so disc bulging or such kind of problems, so he could correct through his mastery. And that only one micro skill made this doctor so famous. And now if somebody is suffering from fever, they also get treatment from his hospital. तो अब वो सारे काम रिलायंस की तरह करेंगे, पर एक माइक्रो चीज पकड़ी और उस माइक्रो चीज से फेमस होना है। आप समझना, बिजनेस बाद में होगा,
पहले फेमस होना है आपको, और फेमस होने के लिए आपको मास्टरी करनी पड़ेगी एक चीज में, छोटी चीज में, जहां कंपटीशन कम होगा, शार्पनेस ज्यादा होगी। तो आपने अपने रास्ते को शार्पन कर लिया, एक छोटा रास्ता बनाया। रादर आप सब काम करना जो आप करना चाहते हो, बट एक चीज की मार्केटिंग करनी है आपको ऑनलाइन, उसी पर फोकस करना है। जैसे डॉक्टर ने लिखा स्लीप मेडिसिन, यस स्लीप मेडिसिन को ही करें आप। और यस दीपिका तिवारी जी ने लिखा रिलायंस की माइक्रो लेवल क्या था। रिलायंस ने पेट्रोलियम से शुरू किया था, जहां उनका पेट्रोलियम था और उनका केमिकल प्रोडक्ट्स थे, बट उसके बाद अब उन्होंने सब शुरू कर दिया। चलिए, सैयद जीशान साकिर ने कहा फार्मास्यूटिकल साइंस की ट्रेनिंग, एब्सोल्युटली बहुत बढ़िया, ये रिफाइंड माइक्रोनीस है आपकी। तो ऐसे हम शुरू कर सकते हैं। अब ये एक्सरसाइज सबने कर ली, मैं चाहूंगा कि आप अपनी इस एक्सरसाइज को ग्रुप में रखना। एक्सरसाइज 1 सैयद जीशान साकिर, माइक्रो स्किल इज दिस। जैसे ही डिफाइन हो जाए इट्स ओके, फिर हम उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। जिनको लगता है कि अभी उनका पक्का नहीं है, they can connect with me one-on-one and we can discuss in detail because we have shorter time here। तो यहाँ अभी ज्यादा समय नहीं लेंगे। बस मैंने बता दिया कि सक्सेस होने के लिए पहली एक्सरसाइज है कि आप अपनी स्किल को, आप अपने प्रोडक्ट को, आप अपनी सर्विस को एक माइक्रो लेवल पे ले जाएं, जहां कंपटीशन को बीट करने में आप मजबूत हों, और वो काम करो जिसमें आप अच्छे हों, जिसमें आपको लगता हो कंपटीशन को बीट कर दोगे, आप रौंद डालोगे कंपटीशन को, और आप समझते हो कि आपकी स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी है उसमें, वही काम आगे बढ़ो लेकर। फिर आगे जब एक बार फेमस हो जाओ, फिर आप कुछ भी कर लेना। जिस चीज को आप देख रहे हो, जिसको लेके चल रहे हो, उसकी दो चीजें देखनी है, आप उसके लिए पैशनेट हो और मार्केट में डिमांड हो। बस दो चीजों पर उसको वैलिडेट कर लेना, आप उसके लिए पैशनेट हो और मार्केट में डिमांड हो। अगर ये दो चीज है तो कम चलेगा, तो भी पैशनेट चीज के लिए आपका जोश बना रहेगा, और मार्केट में डिमांड होगी तो डिमांड कहीं ना कहीं से फुलफिल हो रही होगी, आप अपने प्रोडक्ट को पिच करते जाना, तो आप आगे बढ़ जाओगे। ये था प्रोडक्ट का रिफाइनमेंट। अब डिजिटल मार्केटिंग में जब आप जाओगे, आप जब मार्केटिंग शुरू करोगे, लोग कहते हैं कि मैंने बहुत मार्केटिंग की बट मुझे रिजल्ट नहीं मिला। मैंने 2.5 लाख रुपए का कोर्स किया था, 6 महीने किसी स्कूल ऑफ मार्केटिंग से मैंने डिग्री ली, डिप्लोमा लिया, वहां से बहुत सारी ट्रेनिंग ली, प्रैक्टिस की, मैंने आउटसोर्सिंग की, लोग हायर किए, स्किल सेट लिया, बट रिजल्ट नहीं आया। यहां एक गलती होती है कि प्रोडक्ट को रिफाइन करने के बाद, सेट करने के बाद, एक छोटी सी गलती होती है कि अगर मेरा प्रोडक्ट, यानी मैं अगर 15,000 रुपए की कोचिंग का प्रोग्राम है मेरा, अगर मैं फार्मास्यूटिकल के लोगों को कोचिंग देता हूं सैयद जीशान साकिर की तरह, तो अगर मैं 15,000 रुपए चार्ज करता हूं और आज मार्केटिंग करनी शुरू की, तो आई एम सॉरी, आपको लीड्स कम मिलेंगे, कम मिलेंगे। तो जो लोग महंगे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, उनको यहाँ चैलेंज आने वाला है। जब तक आप नए हो, जिस दिन आपका मार्केट सेट हो गया, लोग आपको जान गए, अवेयरनेस फैल गई, आपका ब्रांड सेट हो गया, फिर आप कुछ भी बेच सकते हैं, कितना ही महंगा बेच सकते हैं। बट आज जब आप लेस पॉपुलर हो, राइजिंग हो, उस स्टेज में आपसे महंगे प्रोडक्ट कोई ऑनलाइन में नहीं खरीदता। ये मेरा पक्का एक्सपीरियंस है कि आप राइजिंग है, महंगे प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फिर क्या करें? सक्सेस तो होना है, पावर्स भी यूज करनी है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? तो यहां किसी के पास कोई आंसर है? प्लीज आप में से सिर्फ गैस करके बताएं मुझे, और क्या बताएं कि जो मैं कह रहा हूँ सही बात। लो कॉस्ट प्रोडक्ट और लो कॉस्ट सर्विस, सो दैट जो आपका सेल्स फनल में ज्यादा से ज्यादा लोग एंटर कर सके एंड दे कैन टेस्ट योर प्रोडक्ट और सर्विस एटलीस्ट। एब्सोल्युटली, थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो जब हम पॉपुलर हो रहे हों, तब हमें क्या करना है? पॉपुलर होने के लिए, लोगों को एक बार ट्रस्ट देने के लिए, लोग एक बार आपको परख लें, लोग एक बार आपको जान लें, आपको क्या करना है? अपनी दुकान के बाहर वो प्रोडक्ट लटकाना है जिस प्रोडक्ट की कीमत कम हो और चमक ज्यादा हो। प्रोडक्ट की कीमत कम और चमक ज्यादा,
लोग बाहर लटका हुआ प्रोडक्ट देखते हैं तो कहते हैं कितने का है, उससे कहो अंदर आओ, या एक बार वो खरीद जाए तो अगली बार फिर आपके पास आएगा। यस, विनायक जी ने कहा आइडेंटिफाई पेन पॉइंट। मैं आ रहा हूं सर उस बात पर, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज करना है 3 तरीके से, 3 कैटेगरी में। अब किसी के पास एक प्रोडक्ट हो तो वो कहते हैं कि हम 3 में कैसे करें। यस, उनके भी आंसर है। तो सेकंड एक्सरसाइज ये है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को या प्रोडक्ट को आपको क्या करना है, ब्रेक कर देना है 3 कैटेगरीज में। अगर 3 नहीं हो सकती तो मिनिमम 2 में जरूर करें। कैसे? डॉक्टर ने नया अस्पताल खोला तो उन्होंने हेल्थ चेकअप कैंप लगा दिया। हेल्थ चेकअप कैंप के पर्चे छपवा के डाल दिए, लोगों को बता दिया फ्री ओपीडी ऑन संडेज। संडे को फ्री ओपीडी के लिए भीड़ आ गई। भीड़ ने अस्पताल देख लिया, डॉक्टर देख लिया। डॉक्टर मुस्कुरा के बात करता है, तसल्ली से बीमारी समझता है, प्यार से दवाई लिखी और फिर कहा अगली बार जरूर आना। मरीज डॉक्टर के साथ कनेक्ट हो गया, हॉस्पिटल के साथ कनेक्ट हो गया, मरीज को फायदा हो गया। फायदा होते अब वो फीस देके भी उसी अस्पताल में इलाज कराने वापस जाएगा। कैटेगरी ए थी कि आपने फ्री सर्विस दी, अब फ्री लेने के बाद वो वापस वहीं आएगा क्योंकि उसने टेस्ट कर लिया। तो कैटेगरी बी का प्रोडक्ट भी लेगा। कैटेगरी बी का प्रोडक्ट क्या लेगा? चलो एक्सरे कराओ, इन्वेस्टिगेशन कराओ, ब्लड चेकअप कराओ, ये तो फ्री नहीं थे। कैटेगरी बी। कैटेगरी सी का मतलब है अगर आपका इन्वेस्टिगेट हुआ कि उनको कोई सर्जिकल करेक्शन की जरूरत है तो कैटेगरी सी, हैवी प्रोडक्ट, प्रीमियम प्रोडक्ट। वैसे ही अगर आप कोचिंग देते हैं, फ्री वेबिनार्स लगाओ लोगों के लिए, फ्री वेबिनार्स। फ्री वेबिनार में 50, 100, 150 लोग आए, उन्होंने आपको 1 घंटे सुना, उनको लगा जादू है संदीप अरोरा की आवाज में और वास्तव में ही कुछ अनुभव है। अब जब आपके एक्सपीरियंस से जब वो रूबरू हुए, 150 लोगों को आप कुछ भी नहीं कहोगे, बाद में उन 150 के कॉन्टेक्ट्स आपके पास आ गए। अब आप एक मिड प्राइस प्रोडक्ट या उससे थोड़ा सा ऊपर का आपने एक प्रोडक्ट दे दिया कि डॉक्टर संदीप अरोरा जो हमारे कोच हैं, उनका एक वेबिनार होने जा रहा है और बहुत वंडरफुल प्रोग्राम है और उसकी कॉस्ट 99 रुपीज है 1.5 घंटे के प्रोग्राम की। लोग खुश होकर लेंगे क्योंकि उन्होंने पहले फ्री में लिया था। 150 में से 15 लोग वो प्रोग्राम ले लेंगे। अगर फ्री वेबिनार 150 की आपने 10 की थी तो अब 10 में से आपने 150 का कितने हो गए? 1500 में से 15 हर एक में से ली तो आपका कैटेगरी बी के लिए 150 लोग इकट्ठे हो गए। इन 150 लोगों को 2 घंटे का जो वेबिनार दिया, इसकी कॉस्ट ले रहे हो आप। रादर यू आर नॉट अर्निंग अ गुड अमाउंट फ्रॉम देम, बट यू आर गेटिंग लीड्स, पीपल आर कमिंग इन योर रूम, आपके साथ कांटेक्ट हो रहा है। 2 घंटे में अगर आपके पास जादू है and you could influence them, you could add some value in their lives, career or profession or business, they will be yours. Whenever you will pitch your premium product to them now or in the future, then you can say, then you can identify there are 10 to 15 people only who have severe problem and they require your premium product. Actually they are in urgent need of this, and then your team or you chase them, they can be converted for your premium product. This way you get 10% people out of this category B for your category C for your premium product. And this way online marketing gets happen actually. अगर आपको ऑनलाइन में सक्सेस पानी है, you have to categorize your product, you have to categorize your service. आपको अपनी सर्विस को या प्रोडक्ट को 2 से 3 हिस्से में बांटना पड़ेगा। Can I say something? Yes, please.
तो इट इज वेरी ट्रू जो आपने बताया करके, एंड वी आर आल्सो डूइंग दिस, जो आपने ये कोच का ही बता दिया, फ्री वेबिनार, एंड देन दिस इज द सीक्वेंस व्हाट वी आर डूइंग. बट अगर व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग, नो, कई सारे मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उसके अंदर कैसे किया जाए सर्विसेज? कुछ चीजों में, कुछ चीजों के लिए किया जा सकता है, कुछ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए, बट आई होप नॉट फॉर एवरीथिंग. You are absolutely right, but whatever we are doing here, actually, सैम्पलिंग कर सकते हो. जैसे मैं MR की सैम्पलिंग की बात करूं, या मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट्स जहां हैं वहां प्रोडक्ट्स की सैम्पलिंग ही फ्री कर सकते हो आप लोगों को प्लांट विजिट करा सकते हैं, आप लोगों को सैम्पलिंग भेज सकते हैं, आप लोगों की टेस्टिंग कर सकते हैं वहां जाकर. उनके जैसे मैन्युफैक्चरिंग में, अब जैसे मैं ऑयल्स की, मैंने एक इंडस्ट्री में काम किया, वहाँ मैंने पैट इंडस्ट्री में काम किया, और इट वाज 100% मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ हम 600 मीट्रिक टन पैट केमिकल प्रोड्यूस करते थे. तो व्हेन वी स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग, तो लोग हमारे पास नहीं आते थे, तो वी स्टार्टेड लाइक दैट. हमने वहाँ अपना एक एक बोरा उनके प्लांट पे रखवाया, उनके साथ हमने एक एग्रीमेंट किया, उनकी टीम के साथ, हम मार्केटिंग टीम के साथ, कि आप हमारे एक बोरे को चला के देखें. और ये तो हमें एक वहां से फीडबैक आता था कि आपके प्रोडक्ट को चलाने में हमारी मशीनरी और लाइन को कोई लॉस हुआ तो क्या होगा. तो हम उनके साथ एक एग्रीमेंट करते थे, नहीं होगा, होगा तो हम कंपेंसेट करेंगे. उनको एक ट्रस्ट देना था, और हमने एक सैंपल दिया उनको. उस सैंपल से उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए, पैट प्रोडक्ट्स बनाए, और वो चलने के बाद फिर हमारा प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया और आसपास की कंट्रीज में हमने सेल किया. तो पहले उसको पिच करने के लिए, हमने पेनिट्रेट करने के लिए कहीं से उनको सैंपलिंग की. तो ये एक एक्सपीरियंस हो सकता है मेरा. अब किसी के मेटल प्रोडक्ट्स हों और मल्टीपल प्रोडक्ट्स हों, तो वो सबके साथ सैंपलिंग नहीं हो सकती, पर टेस्टिंग के लिए कहीं ना कहीं आपको यही प्रोसेस रखना होता है. आई वॉज इन अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऑफ ग्लास फाइबर, जहाँ पर AC डक्ट बनाते थे हम टाटा के लिए. तो टाटा में हमारी टीम हमेशा लगी रहती थी उनके लाइजन में, और हम उनसे कोशिश करते थे कि उनके ट्रायल के लिए एक प्रोडक्ट का हम ड्राइंग लें और उसको फिर ट्रायल करके भेजें, टेस्टिंग कराएं. हमें एक प्रोडक्ट के लिए करीब 1.5-2 साल लगा ट्रायल करते करते, पूरा सेटअप लगाया हमने. फिर वो जब एक बार हो गया, उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, फैक्ट्री की फैक्ट्रियां लगती गई और उनको AC डक्ट देते गए. तो ऐसे यही पेनिट्रेशन का एक तरीका है. रादर वो ऑफलाइन था, बट यहाँ बात ऑनलाइन की कर रहे हैं, जब मासेज आपके साथ कनेक्ट करेंगे. तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग में आप हैं, तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग में यहाँ अभी हमारे साथ संदीप कंकरिया जी हैं, वो एक बैटरी केमिकल बनाते हैं. अब बैटरी केमिकल एक नई इंडस्ट्री में जा रहा है, तो उसके पैरामीटर्स जो भी हैं, उन पैरामीटर्स पर आप अपने देख लेंगे, उनको क्या पैरामीटर सप्लाई हो रहे हैं, आपको क्या पैरामीटर्स आपके प्रोडक्ट के हैं. अगर आपके पैरामीटर्स अच्छे हैं, उनसे अच्छी क्वालिटी के हैं, आप प्रोडक्ट को पिच करो, 5 लीटर की कैन उनको भेजो, 10 लीटर की कैन भेजो उनको, और वो फिर आपको वो टेस्ट करेंगे और फिर आपको ट्रस्ट करेंगे. तो मैन्युफैक्चरिंग में ऑफलाइन थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी होती है ऑनलाइन के साथ साथ. बट जहां सर्विसेज की बात है, जहां ब्रांड्स की बात है, वहां ऑनलाइन में आप बहुत आसानी से इस तरीके से 3 कैटेगरी बनाकर आप ले जा सकते हैं. आई थिंक मैं आपकी बात का जवाब दे पाया. थैंक यू सर. ओके, वेलकम. यस, तो यहाँ हमें प्रोडक्ट्स को पिच करने में और ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाने में 2 चीजों की जरूरत होती है. पहली, प्रोडक्ट्स को 3 तरीके से या 2 तरीके से आप अलाइन कर लें प्राइसिंग के बेसिस पर. अब फ्री वेबिनार आप 45 मिनट का दो, जरूरी नहीं आप उनको सब कुछ सिखाओ, एक छोटी माइक्रो स्किल सिखाओ, लोगों में चेंज ला दो, मुस्कुराहट भी ला दी आपने उनके चेहरे पर आधे घंटे में. अगर आपने पेशेंट्स के लिए सेशन लिया, आपने स्ट्रेसफुल लोगों के लिए सेशन लिया, जैसे आनंदिता जी लेती हैं, आपने हाउस वाइफ्स को लिया, 50 हाउस वाइफ्स में 10 लटके हुए चेहरे आए, और उन 50 के वेबिनार में उन लटके हुए चेहरों को मुस्कुराहट भर के भेज दिया, तो 10 तो मुरीद हो गए आपके. 45 मिनट में आपने एक एक्सरसाइज कराई, बैठो आंखें बंद करो, 5 मिनट को आपने उनकी जो क्लींजिंग प्रोसेस लगाया, मेडिटेशन प्रोसेस लगाया, वो ऑनलाइन हो सकता है. 5 मिनट के मेडिटेशन प्रोसेस में उनको पीस फील हो गया, उनको मेंटल एनर्जी फील हो गई, बस आपका काम हो गया. अब वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे. तो ये एक प्रैक्टिस थी कि आप अपने प्रोडक्ट को 2 से 3 कैटेगरीज में ब्रेक करें. ये एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए. इसके साथ एक और अहम चीज है
जो हमें करनी चाहिए, देयर इज वन मोर सिग्निफिकेंट प्रोसेस which we require to do. In online market, you have to establish yourself as an expert of your domain. People will like you, people will get influence from you, people will attract towards you, people will trust you only when you make them trust you, put yourself as an expert over there. अपने डोमेन का एक्सपर्ट जब तक आप उन्हें नहीं बताओगे, जब तक ट्रस्ट नहीं दिलाओगे, बम्बार्डिंग नहीं होगी आपकी एक्सपर्टनेस की। संदीप माहेश्वरी बम्बार्डिंग हुई थी वीडियोस की, और आप सबने एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में उन्हें देखा। उससे पहले शिव खेरा, आजकल कुछ नए नाम आ रहे हैं। क्या हो रहा है? वो अपने को एज एन एक्सपर्ट प्लेस कर रहे हैं उस पर्टिकुलर डोमेन के, तब लोग ट्रस्ट करते हैं। तो आपको भी डॉक्टर मयंक को स्लीप मेडिसिन का यूएई में एक्सपर्ट अपने को एस्टेब्लिश करना है। स्लीप मेडिसिन पर कुछ ना कुछ करते रहना है। ऑनलाइन में कुछ, जब भी स्लीप मेडिसिन कोई सर्च मारे तो डॉक्टर मयंक वत्स का नाम आए, तो आप एस्टेब्लिश हो गए एज एन एक्सपर्ट उस पर्टिकुलर डोमेन में। आप दुनिया को ये बताओ ऑनलाइन कि आप एक्सपर्ट हो, और दुनिया को आप कब बताओगे? जब आप कुछ न कुछ ऑनलाइन एक्टिविटी फ्रिक्वेंटली करेंगे। वहां कुछ न कुछ ऑनलाइन एक्टिविटी। अब क्या ऑनलाइन एक्टिविटी कर सकते हैं? क्या ऑनलाइन एक्टिविटी कर सकते हैं? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। कैसे आप अपने को एस्टेब्लिश करेंगे एज एन एक्सपर्ट ऑफ योर डोमेन? व्हाट यू शुड डू टू प्रूव योरसेल्फ, टू एस्टेब्लिश योरसेल्फ एज एन एक्सपर्ट ऑफ योर डोमेन? प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स। कैसे रखोगे? क्या कर सकते हो आप ऑनलाइन में? यस, वाह, ग्रेट ब्लॉग्स, create post, video with tips which will help your prospects, Instagram reels, absolutely, free consultation, free webinars. Oh my god, सब कुछ जानते हैं आप। next please, free, yeah, straight calls, yeah, ourselves updated with new developments in our niche and create a post, absolutely. Business audits, yeah, expert advices on other posts, yes, great, बहुत बढ़िया। चलिए, आपने मेरे सारे सवालों के जवाब दे दिए, थैंक यू, ग्रेट। ये 1000 रुपए का सवाल और आपने बहुत अच्छे जवाब दिए, नाइस। आप अच्छी सी फीलिंग ले सकते हैं। जिन्होंने भी जवाब दिए, बहुत अच्छा लिखा है। मैं समराइज करता हूं। इंटरेक्शन, more and more interaction with more and more people, maybe on telephone, maybe on blog. Interaction. You interact frequently with the people. Answer their questions. Quora. Go on Quora. Go on LinkedIn. So people are asking some questions. You put answers over there. Help them. Help people. Nobody is starving for your product or services. They actually starving for help. They actually want your help to come over from their problem or to grow more. आप लोगों की हेल्प करें, सपोर्ट करें, ब्लॉग लिखें, वीडियोस भेजें। ये बड़ा काम की चीज है। वीडियो, छोटे छोटे वीडियो आपने भेजे और मस्त काम करते हैं, ये वायरल होते जाते हैं। डॉक्टर विश्वस्वरूप चौधरी, माय गॉड, एक वीडियो डाला डायबिटीज पे, कॉन्ट्राडिक्टरी, और फेमस हो गया दुनिया। अभी दूसरा वीडियो आ रहा है, फेमस हो रहा है, वायरल हो रहा है वीडियो। आपको भी कुछ हटके डालो, रूटीन चीज नहीं, कुछ हटके डालो, कुछ नया डालो जो अब तक नहीं था, फिर देखना ये कैसे वायरल होता है आपका। लिखो ब्लॉग। तो आपको ब्लॉगिंग करनी है, छोटे छोटे वीडियो डालने हैं, ये स्किल सीखनी चाहिए और सीखनी होंगी। इंटरेक्ट करो, कोरा पर जाओ, लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दो। आप वेबिनार कंडक्ट करो, लोगों के प्लेटफॉर्म्स पर जहां लोग वेबिनार कंडक्ट करते हैं, जहां लोग वेब वेबिनार एस्टेब्लिश करते हैं, ग्रुप वेबिनार एस्टेब्लिश करते हैं, उनके पैनल्स में जाओ,
निकलो थोड़ा अपने डोमेन से, आप अपने रूटीन से 1 घंटा आधा घंटा रोज निकालो और अपने को एक्सपर्ट प्लेस कर दो। देखोगे थोड़े समय में आप लोगों के चहेते बनते जाओगे और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे, आपका ब्रांड, आपका नाम एस्टेब्लिश होता जाएगा। ये 2 चीजें चाहिए। ये तीसरी एक्सरसाइज है कि कि आपको कुछ न कुछ फ्रिक्वेंट करना है ताकि लोगों की नजर में आप चढ़ते जाओ एज एन एक्सपर्ट। और ये एक्सपर्ट एक बार चढ़ जाओ फिर आपको बने रहना है उनके साथ। एज एन एक्सपर्ट आपको बने रहना है। बनने के लिए वो ब्लॉगिंग कंटिन्यू रहे। ये वन टाइम एक्सरसाइज नहीं है। वीडियो हफ्ते में 1 डाल दो काफी है, 15 दिन में 1 डाल दो, 2 मिनट का वीडियो बनाओ, बस सीख लो। आप क्लिनिक में वीडियो बनाना सीख लें। मेरे साथ एक डॉक्टर है मुंबई हॉस्पिटल में, वो कैंसर का सबसे बड़ा कौन सा हॉस्पिटल है, वो उसके ओटी में खड़े होकर 2 मिनट का वीडियो बनाते हैं और वायरल कर देते हैं। ओ माय गॉड, डॉक्टर सुनील, यस, वो ओटी से उन्होंने क्लासेस अटेंड की और वहीं से वीडियो बनाना सीखा। क्या फंटास्टिक वीडियो बनाए। डॉक्टर अल्पेश मुंबई से, उन्होंने वीडियो बनाए और अपना ब्रांड फेमस करना शुरू कर दिया। उनका कोर्स आ गया उडेमी पर कोर्स अप्रूव हो गया। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको एज एन एक्सपर्ट एस्टेब्लिश कर देंगी। आपके डोमेन में आपको एक्सपर्ट एस्टेब्लिश करके और दुनिया में ऐसे आप फ्लैश हो जाओगे, ऐसे वायरल हो जाओगे और जाने कितने करोड़ों लोगों तक आपकी रीच बन जाएगी। जो कुछ आप इतने सालों में नहीं कर सके वो हो सकता है साल या 2 साल में लोगों की हेल्प कर करके आप आगे आ जाओ। नारायण सेवा संस्थान लोगों की हेल्प की दुनिया में छा गए। तो आप ऐसी छोटी छोटी स्किल सीखकर, ये छोटे छोटे काम करके अपने को एक्सपर्ट प्रूव करो और फिर लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। जब अट्रैक्ट होंगे तो छोटी गोली दो, फ्री वाली दो, फिर कम पैसे वाली दो, फिर प्रीमियम प्रोडक्ट दो। अगर आप कोच हैं, फ्री वेबिनार करो, फ्री ई बुक्स बांटो, फ्री वीडियोस बांटो, फिर स्मॉल प्राइस्ड प्रोडक्ट पिच करो और फिर उनको कोचिंग दो। फिर लोग आपकी कोचिंग तक आएंगे। आप हैंड होल्डिंग करो, मेंटरिंग करो, अनकंडीशनल करो, फिर देखना आपकी ट्राइब बननी शुरू हो जाएगी। तो ये तीसरी एक्सरसाइज थी, ये तीसरा सीक्रेट था ऑनलाइन की दुनिया में सक्सेस पाने का। तो आपको ये तीसरी एक्सरसाइज में ये करना है, सिर्फ देखना नहीं है, आपको ये करना है कि आप क्या करने वाले हो। प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स आप अपने डोमेन में एक्सपर्ट एस्टेब्लिश होने के लिए व्हाट एक्सरसाइज यू वुड डू। आप क्या करोगे, प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स। तीसरी एक्सरसाइज आपके लिए, आप क्या करने वाले हो। मैक्सिमम इंटरेक्शन गोयलासी, यस, कैसे करेंगे मैम मैक्सिमम इंटरेक्शन, कैसे करेंगे, अब तो प्रैक्टिकल पे बात आ गई है। संदीप अरोरा जी, रील्स एंड शॉर्ट वीडियोस, एब्सोल्युटली बहुत बढ़िया। शॉर्ट वीडियोस डालेंगे आप, एनिमेटेड वीडियो डाल सकते हैं आप, इन्फोग्राफिक्स वीडियो डाल सकते हैं आप, अपने एक्शन सूट वीडियोस डाल सकते हैं। विनायक जी, ब्लॉग वीडियोस, ब्लॉग पोस्ट वीडियोस एंड कोरा, यस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस डाल सकते हैं। दीपिका जी, यस, आप एक ही चीज आपको एस्टेब्लिश नहीं करेगी, आपको मल्टीपल चीजें लेनी पड़ेंगी। प्लीज आप एक से ज्यादा चीजें उठाओ, अपनी बकेट में एक से ज्यादा चीजें रखो, जल्दी पॉपुलर होंगे। एक एक करके काम करोगे तो देर लगेगी, वर्षों लग जाएंगे, मोटिवेशन कम हो जाएगा। आनंदिता जी ने लिखा पोस्ट, ब्लॉग्स, रील्स, ऑनलाइन, शॉर्ट वीडियोस, ई बुक्स। ओ माय गॉड, ई बुक तो आपकी रेडी है ऑलमोस्ट। आनंदिता जी ने ई बुक लिख दी है, ऑलमोस्ट तैयार है उनकी, और जल्दी ही वो फ्री में हमें मिलने वाली है। जी अनंता जी, फ्री में मिलेगी, पैसे लेंगे? अनंता जी ने माइक बंद कर लिया, बोला फ्री में ना ले लें कहीं। ओके ग्रेट, वंडरफुल, बहुत बढ़िया, तो हमारे ग्रुप को फ्री में मिलने वाली है। चलिए नाइस। तो यहाँ आपको ई बुक लिखना भी सिखाया जाएगा, आप सब ऑथर बन के निकलोगे यहाँ से। यस ग्रेट, बड़ी आसानी से, बहुत आसानी से 1 हफ्ते में ई बुक लिख जाएगी आपकी। कम ऑन संदीप जी, जरूर आपकी ई बुक पक्का लिखी जानी है, सबकी एक एक ई बुक निकलेगी यहाँ से। यस, तो आप सब ने थोड़ी सी कंजूसी की है चीजों में। एक्सपर्ट एस्टेब्लिश करने के लिए थोड़ी और चीजें करनी पड़ेंगी। आपको प्लान करना पड़ेगा कि आप महीने में कब करने वाले हो। 1 महीने में कितने वीडियोस निकालोगे, 1 महीने में कितने ब्लॉग्स लिखोगे, कितने
घंटे आप कोरा पे देने वाले हो, प्लीज यू हैव टू प्लान दिस, राइट दिस एक्सरसाइज टू डू। एक डायरी आपको रखनी है, उसमें पेन लगा के छोड़ देना, जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए अगले 6 महीने तक काम आएगी। आज से ही उस पर डिजिटल मार्केटिंग लिख दो और उसमें ये एक्सरसाइज लिख देना कि आप महीने में क्या करने वाले हो टू एस्टेब्लिश योरसेल्फ एज एन एक्सपर्ट, और उससे पहले प्रोडक्ट को कैसे शेप करोगे वो। ये 5 एक्सरसाइज आपको उस डायरी में करनी है, प्लीज 5 एक्सरसाइज करनी है, उस डायरी में लिख देना। जब भी आप क्लास में आए उस डायरी को साथ रखना। आपको पिछली क्लास, क्योंकि 8 दिन में हम मिला करेंगे, 6 से 8 दिन में मिलेंगे, तो पिछली चीजें कहीं आप भूल ना जाओ, वो डायरी याद रखेगी। जैसे ही आप ओपन करोगे 5 मिनट पहले भी डायरी को देख लिया करोगे तो आपको याद, अच्छा मेरे को एक्सरसाइज करनी थी, अभी मैं माइक को ऑफ करके और फिर एक्सरसाइज कंप्लीट करता हूँ और फिर माइक ऑन कर लूंगा। यस, आपको याद तो आएगा, चीजें हवा में तो नहीं जाएंगी। यस, हाँ, गूगल भी रख सकते हो आप, एब्सोल्युटली। तो यहाँ ये एक्सरसाइज हो गई 3, बस 2 एक्सरसाइज और बची हैं। चलिए, मैंने बताया 5 अरब लोग ऑनलाइन हैं। क्या 5 अरब लोग हमसे खरीदेंगे? नहीं। तो कितने लोग खरीदेंगे? नहीं पता। तो वो कौन लोग होंगे जो आपसे खरीदेंगे? ये पता करो। चौथा सवाल उठता है कि आपसे खरीदेगा कौन? और उसका उत्तर है, आपका प्रोडक्ट B2B है या B2C है? आपसे बिजनेसेस खरीदेंगे या आपसे कस्टमर खरीदेगा, एंड क्लाइंट खरीदेगा, एंड कस्टमर खरीदेगा? आप ये एक्सरसाइज आपको जरूर करनी है। क्यों? क्योंकि जिस दिन आप पैसा लगाओगे मार्केटिंग पर, उस दिन ये चीजें आपको आपके पैसे की वैल्यू देंगी और मार्केटिंग में पैसा लगेगा। तो पेड मार्केटिंग जब करोगे या फ्री मार्केटिंग जब करोगे, आपको ये अपना कस्टमर का पर्सोना कैसा होगा, उन 5 अरब लोगों में से आप कैसे ढूंढोगे? आप किसी को नाम से जानते नहीं। आप नाम से नहीं जानते तो आपके पास कुछ पैरामीटर्स तो हो कि बाल्टी लेके पानी भरना है तो काले समंदर में जाना है, गोरे समंदर में जाना है, कहां से भरना है, वो मेरे काम के होंगे कि नहीं होंगे, मैं किन पर पैसा और टाइम और एनर्जी खर्च कर रहा हूं, पहले आइडेंटिफाई कर लो। तो ये आज चौथी एक्सरसाइज है कि यहां एग्जाम्पल सामने दिया है, क्या आपका बिजनेस B2B है या B2C है? ये बड़ा आसान है, इसका आंसर आपको पता है। अगर आप बिजनेसेस को बेचोगे तो B2B हुआ, अगर आप कस्टमर को बेचोगे डायरेक्ट तो B2C हुआ। किस एज के लोग आपसे खरीदेंगे? ओ माय गॉड, इससे क्या फर्क पड़ा? इससे फर्क ये पड़ा, अगर यंग एज के लिए प्रोडक्ट है तो इंस्टाग्राम पर चलो, ओल्ड एज के लिए प्रोडक्ट है तो आप फेसबुक की तरफ बढ़ो। उससे भी ज्यादा आपको ज्यादा ओल्ड एज के लोग चाहिए तो, और अडल्ट भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, सारे इकट्ठे चाहिए तो यूट्यूब पे चलो। किस जेंडर के लोग आपको चाहिए? मेल्स चाहिए या फीमेल्स चाहिए? मेल्स चाहिए तो 5 अरब में से 2.5 अरब हो जाएंगे, आधे आधे लगभग। फिर आप मेल्स में से ढूंढो, फीमेल्स की तरफ ना जाओ। फीमेल्स के लिए प्रोडक्ट है तो फीमेल्स के लिए ढूंढो, दोनों के लिए प्रोडक्ट है तो दोनों को ढूंढो। ये कैसे ढूंढेंगे ये हम आगे कोर्स में सीखेंगे। तो आप तो आज सिर्फ आइडेंटिफाई कर लो कि आपके लिए आपका पहला पॉइंट B2B या B2C है। लिख दो चैट बॉक्स में, किस एज के लोग आपको चाहिए, किस जेंडर के लोग आपको चाहिए, किस वर्क प्रोफेशन के लोग आपको चाहिए। टीचर हैं, ट्रेनर हैं, फ्रीलांसर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस मैनेजर हैं, कौन है? बैटरी मैन्युफैक्चरर हैं, पेशेंट्स हैं। पेशेंट्स कहाँ के हैं? दुबई के हैं, कतर के हैं, शारजा के हैं, इंडिया के हैं, इंडिया में मुंबई के हैं, दिल्ली के हैं, जयपुर के। कहाँ, किसको टारगेट करने वाले हो? लोकेशन, सिटीज, कौन से शहर? आपके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि आप पूरी दुनिया को एक साथ टारगेट कर दो। नो, ना इतना पैसा खर्च करने को है अभी। तो हमें स्टेपिंग होना है, पहले एक सिटी को, एक एरिया को, एक लोकेशन को, एक प्रोफेशन को हमें टारगेट करना है, वहां से बिजनेस निकालना है, फिर दायरे को बढ़ाते चलेंगे। मैरिटल स्टेटस क्या होगा? मैरिड होंगे, अनमैरिड होंगे,
दोनों होंगे। किस इनकम लेवल के चाहिए? अब इन 5 अरब लोगों में ऐसे बहुत से जियो फोन यूजर भी हैं जिनके इंटरनेट तो है, बट वो आपके प्रोडक्ट्स नहीं देख सकते, वहां आपके साथ इंटरेक्ट नहीं हो सकते। सारे झारखंड में, कल मैं झारखंड में एक करियर काउंसलर का वेबिनार ले रहा था, तो मेरे साथ सारे गवर्नमेंट टीचर्स जुड़े हुए थे वहां से, और उन सारे टीचर्स को मैं ट्रेनिंग दे रहा था। तो मुझे वहां से पता चला कि इंटरनेट तो बहुत है लोगों के पास, स्मार्टफोन भी है, बच्चों को गाइडेंस मिलना है तो स्मार्टफोन पे जा सकता है। उन्होंने कहा जियो फोन है सर, वहां वो इंटरनेट तो नाम के लिए है बट कुछ देख नहीं सकते। तो ऐसे फैक्ट भी हैं कि आप जिनको टारगेट कर रहे हैं उनका इनकम लेवल क्या है। आज हर आदमी उस लेवल पे आ गया जहां स्मार्टफोन आ गया है उनके पास, पर क्या वो आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं? नहीं। तो जो आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं उस इनकम लेवल के लोगों को टारगेट करो, तो आपकी ये सर्च थोड़ी नैरो होती जाएगी। गोयल आसी ने लिख दिया, यस। एजुकेशन, किस एजुकेशन लेवल के लोग हैं? अगर स्टूडेंट्स के, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है तो 12+ चाहिए आपको, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए प्रोडक्ट है तो बिलो 12 चाहिए आपको, किस लैंग्वेज को बोलने वाले लोग चाहिए, ये सारी चीजें आपको बहुत जरूरी होंगी। संदीप अरोरा जी ने V2C 20 to 50 फ्रीलांसर्स, 20 सिटीज, मेल और फीमेल दोनों, 20K प्लस चाहिए, 10th प्लस चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों चाहिए। बहुत बढ़िया संदीप जी, ग्रेट, आपने बहुत परफेक्टली, संदीप जी से हम देख सकते हैं उन्होंने चैट बॉक्स में अपना पूरा डिफाइन कर लिया है। आप भी प्लीज डिफाइन करके अपनी डायरी में लिख दो। ये 5 एक्सरसाइजेज चाहिए, मैं अगले हफ्ते इन 5 एक्सरसाइजेज को आपसे पूछूंगा, हो सकता है इंडिविजुअली पूछ लूं। तो ये 5 चीजें प्लीज पक्की कर लो, डिजिटल मार्केटिंग आपको बड़ी वैल्यू देने वाली है। चलिए, विनायक साठे जी ने भी लिख दिया, ग्रेट। तो ये चौथी एक्सरसाइज हम कर चुके, अब लास्ट एक्सरसाइज बची है और बड़ी प्यारी सी एक्सरसाइज है। आइए पूरे जोश के साथ, आप पानी पी सकते हैं, थोड़ा हिल डुल सकते हैं और हिल डुल के वापस बैठ जाएं। एक एक्सरसाइज बची है, 10 मिनट की एक्सरसाइज है, जिंदगी बदल सकती है, बिजनेस का तरीका और नजरिया बदल सकती है। आइए मेरे साथ 5वीं एक्सरसाइज पे चलते हैं। Let's move for our 5th and last exercise. कितना बिजनेस चाहिए हमें? How much business you need to do? I'm asking to you. ये क्वेश्चन आपका 1,000 10,000 नहीं, सीधे 5 करोड़ का हो सकता है। ये वो अंतिम सवाल है जो सबसे कीमती है आपको सक्सेस दिलाने के लिए। ये बड़ा बचपना सा है, यानी आप कहोगे ये सवाल यहाँ पूछना, ये एक्सरसाइज यहाँ करनी कितनी रिलेवेंट है, बट एक्चुअली बिना इसके मोटिवेशन नहीं है। ये बहुत अहम एक्सरसाइज है और जिन्होंने ये कर ली जिंदगी में वो अपने रास्ते पर सीधे चलते हैं। कितना बिजनेस चाहिए आपको? प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स हाउ मच बिजनेस यू वांट इन योर लाइफ। कितना आपका लॉन्ग टर्म बिजनेस है? 1 लाख पर मंथ। आनंदिता जी ने लिखा 1 लाख रुपए महीने के। कब तक मैम? जिंदगी में कब तक 1 लाख रुपए महीने चाहिए? 700 स्टूडेंट्स पर मंथ। ओह माय गॉड, ग्रेट। यस, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। 2 लोगों का आया, बहुत बढ़िया, आई विल सैल्यूट यू। आनंदिता जी ने सबसे पहले लिखा, गोयल आसी जी ने लिखा 700 स्टूडेंट्स 1 महीने में चाहिए। कम ऑन, यस, बहुत बढ़िया। बाकी सब बाकी सब बाकी सब बाकी सब प्लीज। इक्कीस लोगों में से मैं निकल जाऊं तो 20 लोग हैं और 20 लोगों में से 2 लोगों के जवाब आए। 18 से मैं उम्मीद करूंगा। शुभम ने लिखा 5 lakhs पर डे, बहुत बढ़िया। माई कंपनी आस्किंग फॉर 1 करोड़, विवेक जी, यस। संदीप अरोड़ा जी 1.5 lakhs नेट पर मंथ टिल 14th August 2022, यस, ग्रेट। एंड मोनिका अग्रवाल जी 300, मैम 300 रुपये पर मंथ, कुछ गड़बड़ है। प्रीमियम 30 lakhs और 3 lakhs पर मंथ, विनायक साठे जी। संदीप कांकरिया जी
10 new inquiries from Haryana, Himachal, UP per day. Okay. 1 crore per month, Syed Jishan ji. 5 lakhs per month, Pankaj Patil ji. 5 lakhs per month, Shushma ji. Nice, I'll salute. You have something in your hand ready. 300 clients per month, Monica Agarwal ji. Yes, next. Good, good, good. Sanmeet Kaur ji. 5 new 1-1 coaching clients per month, one-on-one coaching till March 2022. Okay, so I can define it my way and you can do the exercise this way too. Actually, we have to decide our goal. We have to fix a business goal. Business goal which should be a long-term goal, not a short-term goal at the day. At the day, because in a day, in case you could not get such kind of result, then you will feel demotivated. It should be little flexy, it should be little longer, it should be designed and defined in a professional way. What is that way? You should have one statement which Anindita ji ने बहुत अच्छा लिखा. So I'm showing one example which I have created for myself. My goal is that at what age I am, when I quitted from my job, then I started working as a freelancer, and then I decided a goal for next 10 years. I'll work for next 10 years only. I'll work for next 10 years only. Then after that, I will enjoy the life thoroughly. Rather, I'll enjoy parallel to this. But I'll work for 10 years and I have decided one goal for 10 years. The goal I decided myself, means my name, is committed to become a general manager, civil lawyer by the year 2025. You can say like that. Or the company name, like your company, is committed to add value, providing training services to 10 lakhs people by 31st March 2031. Oh my God. मैं एक ट्रेनर की तरह 31 मार्च 2031 तक 10 लाख लोगों की जिंदगी में अपना कंट्रीब्यूशन ऐड कर दूंगा. दैट इज माय गोल. दैट इज माय लॉन्ग टर्म गोल. मैं 10 लाख लोगों की जिंदगी में चेंज ला दूंगा. आप अगर इंडस्ट्री में हैं तो आप लिख सकते हैं कि मैं इतने करोड़ का टेन्योर ला दूंगा, या मैं इतने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर दूंगा, या मैं ऐसे लोगों की लाइफ में चेंज ला दूंगा. कुछ भी, एक लॉन्ग टर्म आपने गोल बना दिया. अब क्या होगा, आपके पास एक बड़ी तस्वीर है, बड़ी पिक्चर है आपके सामने. बस 10 साल 20 साल मुझे काम करना है, उसके बाद एंजॉय करना है, क्योंकि आप एक ह्यूमन बीइंग है. आपके पास एक लिमिट है, आप कितना करने वाले हो. आप अपने एफर्ट से, या आपकी कंपनी का कोई गोल है, आपका इंडिविजुअल नहीं है, वो कंपनी का है. यहां मैंने लिखा, अगर आप इंडिविजुअल है तो यहां ये गोल हो सकता है, कंपनी का आप रख सकते हो. दैट इज द लास्ट एक्सरसाइज, बट दिस इज नॉट the complete exercise. Here what you have to spread it over on those 10 years. For the tenure, you have created this long-term goal. Now for that you would require a distributive goal plan. Like there is one example, PT and MG are committed to add value to 10 lakhs lives by 31st March 2031. And its next exercise is you have to distribute this goal plan, this long-term goal, into a year-wise goal. We have created this year-wise goal. We have started in 2020 with online. Before that, we were serving offline mode. In online, we started with very practical and reasonable and very achievable kind of goal. So I estimated that in next 10 years, I will earn 250 crores. Now that is enough for the expenses and the things and the growth, or the company expenses. That would be enough for us.
We will add value to the 10 lakhs peoples. We will serve 10 lakhs peoples by 2031. We will earn 254 crores. Money will be a byproduct here, but our actually focus is to add value, to contribute in the lives and businesses and careers of the people, 10 lakhs. And we have spreaded it to the 10 years like this. In the first year, we were supposed to be just targeted 5,000 people. Means number of beneficiaries will be 5,000, and we will earn rupees 500 only on average from a single person, and we will earn 25 lakhs in that particular year, because that was the year of COVID lockdown. Corona lockdown में लोग पैसे खर्च नहीं कर रहे थे, तो we identified this way and we could achieve that. हमने वो अचीव किया. अचीव के बाद देन व्हाट वी डिड कि हर साल हमें कुछ लोग बढ़ाने हैं, कैपेसिटी बढ़ानी है, तो बेनिफिशियरीज के नंबर को हमने 50% से ग्रो किया और एवरेज रेवेन्यू पर कैपिटा पर पर्सन हमने 20% ग्रो किया इन्फ्लेशन पे, कि महंगाई बढ़ेगी 20% पैसे बढ़ाएंगे और 50% ज्यादा लोग हर साल में हम सर्व कर रहे होंगे. दिस वे वी गॉट इंक्रीज दिस, एंड in the next year, we will convert 7,500. Convert means we will serve these people. 7500 लोगों को सर्व करेंगे, इतना ऑन एवरेज निकालेंगे, इतना निकालना है. And this way we will keep doing this, and people will get joining us. The business will get increased. People will coming together, and this way this caravan will go this way. And slowly we would reach to this place. That is our planning for next 10 years. And now, if for this 2021, 7,000 people we have to convert, then if I divide this in 12 months, then 625 would be my target for 1 month. 625, in case in a month we could achieve 500 only, then in the next month, we have a pressure, we have to convert 750 people. So this is a little flexy kind of thing. महीने पर आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो आगे, बट साल पर करके रखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छा एक नीट एंड क्लीन, क्रिस्टल क्लियर गोल प्लान. यस, दिस विल, सनमीत जी, ये आपका 10 बजे तक खत्म हो जाएगा और बस ये लास्ट एक्सरसाइज है. तो ये लास्ट एक्सरसाइज आपको करनी है. I can share the pic of this distributive goal plan. Why I am asking this distributive goal plan to you? Because digital marketing is going to help you once you know the numbers you require to get converted, how many people you require every month. In case this number is with you in the achievable form, then only you can achieve this. And to get 7,500 people every year, you would require certain things, certain skills, certain resources, certain setup. That setup you have to create at your end to get this business you estimated for you for that particular year. So that exercise will be done once you have freezed the figure for one particular year. किसी एक साल में आपको कितना बिजनेस चाहिए, अगर आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया है, तो डिजिटल मार्केटिंग आपको हेल्प कर सकती है कि आप किस किस प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से तरीके अपनाओगे जहां से आपको इतने आदमी मिल सकते हैं, कहाँ कौन से लोग आपके प्रोस्पेक्ट्स कहाँ होंगे, उन प्रोस्पेक्ट्स को आप किस तरीके से आप एड कैंपेन चलाओगे, वहां कैसे आप लोगों को कनेक्ट करोगे, लोग वहां से कन्वर्ट होंगे, फिर ये आपकी हेल्प करने वाली है. तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव गोल प्लान होना आपके लिए मैं रिकमेंड करूंगा. यू शुड प्लान दिस फॉर यू. एंड दिस वाज द 5th एक्सरसाइज. नाउ द टाइम हैज कम फॉर योर क्वेश्चन एंड आंसर्स. My submission is to you that please do these 5 exercises, and you might be thinking that any of the exercise which I have shared it अभी आपको नई लग रही हो सकती है, बट ये डिजिटल मार्केटिंग में जिन लोगों ने इसको पहले से तैयार कर लिया उनको बहुत अच्छी तरह से डिजिटल मार्केटिंग हेल्प करती है और वो रिजल्ट निकाल ही लेते हैं. अगर 3 महीने 6 महीने यहाँ से सीखने के बाद आपको रिजल्ट नहीं आए,
हमें आपका ये टाइम, पैसा तो हमने आपसे बहुत कम लिया है, पर आपसे जो 6 महीने या 4 महीने 3 महीने में जो टाइम हम लेंगे और जो टाइम आप हमसे लेंगे, अगर उसकी वैल्यू आपको नहीं आई, हमें बहुत दुख होगा। यस, सो एब्सोल्युटली संदीप जी, आई कैन शेयर द समरी ऑफ दीज 5 एक्सरसाइजेस। मैं ये 5 चीजों के आपको स्क्रीनशॉट्स आपको भेज दूंगा कल सुबह, और वो आपके एप्लीकेशन में या ग्रुप में आ जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे, आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। अब आपके कोई क्वेश्चंस हो इन 5 एक्सरसाइजेस से? कल सुबह, प्लीज जाने से पहले मैं बता दूं, कल सुबह इस डिस्ट्रीब्यूटिव गोल प्लान से लेकर आगे गैप एनालिसिस की एक्सरसाइज होगी, वो भी ऐसी ही होगी जैसे आज है। उसके बाद हम पूरी टेक्निकल क्लासेस करेंगे। कल एक बेसिक एक्सरसाइज और है जिसमें हम गैप्स आइडेंटिफाई करके और उनको हम ये फ्रीज कर लेंगे कि हमें करना क्या क्या है, क्या चीजें अरेंज करनी है, क्या रिसोर्सेज अरेंज करने हैं, क्या गैजेट्स अरेंज करने हैं, और क्या इकोसिस्टम में हमें चाहिए होगा, कौन से स्किल सेट्स की हमें जरूरत पड़ेगी। दैट्स इट। ये काम हम कल कर देंगे और उसके बाद हम अपनी गाड़ी को सरपट दौड़ाते चलेंगे डिजिटल मार्केटिंग सीखने के। यस, एंड आप सब एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं उसका लिंक आपको भेज दूंगा, तो वहां से आप वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपके हों तो प्लीज यू कैन आस्क। कैलेंडर ऑफ नेक्स्ट 3 months क्लासेस, एब्सोल्युटली इट विल बी शेयर्ड विद यू सर। यस, एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज? इन केस यू हैव क्वेश्चंस यू कैन आस्क। आपके कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं, एंड मैं आपको, यस प्लीज। सर जैसे मैंने अपना लिखा था कि कायरोप्रैक्टर एंड अल्टरनेटिव थेरेपीज, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? जैसे क्या लिखा था सर आपने? मतलब मेरा कायरोप्रैक्टर का काम है। मुझे आप 1-on-1 कनेक्ट होंगे सर, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में हम एक माइक्रो प्रोडक्ट को, मैं नहीं चाहूंगा कि आप डिसाइड करें। ठीक है। आप फोन पे परसों मंडे को हम कनेक्ट होंगे और खूब 10 मिनट 15 मिनट हम ले सकते हैं उस पर। मैं एप्लीकेशन का लिंक आपको भेज रहा हूँ, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। सो यस प्लीज, तो हम 1-on-1 कनेक्ट होंगे सर और फिर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं हो सकता एक्चुअली, ये थोड़ा कस्टमाइज्ड होगा, जहां हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करें तब जाके। सर नाम बता दीजिए। पार्डन, आपकी वॉइस मैम बहुत इको कर रही है। यस प्लीज। एप्लीकेशन का नाम बता दीजिए सर। मैं चैट में आपको ग्रुप। ओके, मैं लिंक दे रहा हूं यहाँ। ये चैट बॉक्स में एक लिंक आ रहा है, बस आप इस पर क्लिक करें और एप्लीकेशन डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा अगर आप मोबाइल से कनेक्टेड है। और अदरवाइज नेम है पीपल ट्रेनर्स। ओके। हाँ, ये आप डाउनलोड कर देंगे तो मैं डाउनलोड करते ही टीम में से आपको कनेक्ट, एक बैच अलॉट हो जाएगा। और वहाँ क्या करना है आपको, मॉर्निंग में, अभी इसको यूज नहीं करना, आपके लेफ्ट हैंड पर बैचेस लिखा होगा, बैचेस पर जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ आपको प्राइम बैच या वो जो दूसरा आपके पास दूसरा बैच है, ओके, आपके पास 5 स्किल्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग आएगा। 5 स्किल्स, आप दोनों में से जो बैच आपका है वो बैच आपको क्लिक करना है, और फिर आपको टॉप मेन्यू होगा एक, वहाँ टॉप मेन्यू में वहाँ वीडियोस लिख रहे होंगे, वीडियोस, और वीडियोस पर आपको क्लिक करना है, वो वीडियो आपको मिल जाएंगे। बहुत सिंपल है। नहीं किसी को समझ में आए तो आप चैट बॉक्स में लिख के डाल देंगे और वहां से मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो आई थिंक आज की एक्सरसाइजेस का जो फीडबैक आप में से कोई देना चाहे, प्लीज, यू आर वेलकम। आपकी एक्सरसाइजेस में से आज की जो एक्सरसाइजेस है, आज का जो सेशन है, उसमें से आप कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज यू आर वेलकम। हम 10 बज गए हैं, 5 मिनट में इसे समराइज करेंगे। कोई Q&A, कोई क्वेरी हो तो यू आर फ्री टू आस्क नाउ। थैंक यू, ग्रेट। और कल 11:30 से 2 बजे का सेशन है जिसमें हम गैप एनालिसिस करेंगे।
आज जो पहली बार यहाँ जुड़े हैं, जो सिर्फ आज के लिए जुड़े हैं, उनको अगर ये सेशन कंटिन्यू करना है तो वो टीम के साथ बात कर सकते हैं, वो प्राइम मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपने पहला सेशन तो ले ही लिया है, और आपको अगर कंटिन्यू करना है तो यू आर वेलकम। और ओके, वेलकम जी। और प्राइम वाले लोग सुबह 11:30 से 2 बजे तक का कल का सेशन है, 2.5 घंटे का टाइम है, उसमें हम एक्सरसाइज फीज कर लेंगे, तो प्लीज सब जुड़िएगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीक जुड़ेंगे, बीच में हम 1-on-1 डिस्कस करके ये सारी एक्सरसाइजेस को अपने फिट करते चलेंगे। नेक्स्ट वीक जो हम स्किल्स शुरू करेंगे सीखना, ताकि हम उसके लिए अपना पूरा बेस सेट कर चुके हों, गैप एनालिसिस कर चुके हों, क्या चीजें अरेंज करनी है वो सब क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए। इसी के साथ आज इस सेशन को यहीं रोकेंगे, विराम देंगे। किसी का कोई क्वेरी हो तो प्लीज पूछ लें, नहीं तो ये सेशन आज ही खत्म होता है। नो क्वेश्चन? चलिए, थैंक यू, थैंक्स एवरीवन, गुड नाइट। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, सब्बा खैर। 2 घंटे मुझे इस तरीके से सुनने के लिए आपका वास्तव में धन्यवाद। चलिए, अब आपके डिनर के लिए, जिनको लेट हो रहा है वो डिनर के लिए निकल सकते हैं, और जिनके कान खिंचाई होनी है अभी वो कान खिंचाई के लिए निकल सकते हैं, लाइक मी। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, सब्बा खैर, शुभ रात्रि। ओके।